Hello friends, myself Nilesh Kodekar and today I am going to teach you Standard 9 Geography Chapter 2nd Endogenic Movements. Okay, this is of Maharashtra State Board, means SSC State Board. Okay, so my channel name is Make Difference with Nilesh. Please like it and subscribe it so you will get the notification at the right time. So let us start this second chapter, Endogenic Movement. Okay, so this is your textbook of geography and here there is a second chapter, endogenic movement. So if you read this, if you start reading this chapter, so what you will observe, there is a one news is given here. Nepal devastated, powerful earthquake rocks Nepal nearly 1500 kill. Okay, so there is a one news in which one earthquake has happened in the Nepal and nearly 1500 people have killed. Okay, and a powerful earthquake measuring 7.9 on Richter scale struck Nepal today. Nearly 1500 people died. What is the scale of the earthquake? 7.9 Richter scale. Okay, and over 1000 people were injured in the disaster. 1500 died and 1000 were injured. The quake and a series of aftershocks delivered a severe blow to Nepal. Earthquake has happened in a series. Okay, so continuous aftershocks has also happened. So it has devastated Nepal. The tremors were also felt across the stretches of east and northeast India. ये जो नेपाल का जो भूकंप हुआ है नेपाल में, उसके जो ट्रेमर्स है वो भारत की जो नॉर्थ ईस्ट बाउंड्री है उधर भी उसके ट्रेमर्स का धक्का जो है उधर भी लगा है. और इट वॉज ऑल्सो फेल्ट इन चाइना, भूटान एंड फार एज पाकिस्तान एंड बांग्लादेश. सो इसके जो ट्रेमर जो है वो चाइना, भूटान और पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी महसूस किए गए हैं. और अर्थक्वेक जो था उसका ईपी सेंटर क्या है? लामजुंग, जो कि 80 किलोमीटर है. नेपाल का कैपिटल जो काठमांडू है उससे 80 किलोमीटर दूर है. ओके, और इसका जो इम्पैक्ट है बिहार, वेस्ट बंगाल एंड उत्तर प्रदेश, इसके जो इंडियन स्टेट्स है इस पे भी हुआ है. सो दो अर्थक्वेक हुए हैं, दो बिग ट्रेमर हुए हैं. जो एक था 7.9 रिश्टर स्केल का. जो भूकंप जो है, अर्थक्वेक जो है वो रिश्टर स्केल यूनिट में नापा जाता है. ठीक है, तो वो 11:40 में, और दूसरा जो हुआ 6.6 रिश्टर, और जो वो हुआ 12:19 में. और उसका ईपी सेंटर क्या था? ईपी सेंटर मतलब जो जहाँ से भूकंप की शुरुआत हुई. शुरुआत कहाँ से हुई? इस जगह पे लामजुंग, ये जो नेपाल की जगह है उस जगह से भूकंप की शुरुआत हुई. मतलब ये लामजुंग की जगह पे उस कहीं ज़मीन के बीच अंदर इसका सेंटर होगा. यहाँ पे देखिए फोकस मतलब भूकंप का केंद्र. वो कितना दूर है? ज़मीन के अंदर 11 किलोमीटर अंदर था. ठीक है, और उसके बाद 17 मोर शॉक आए और 2 बड़े धक्के लगे. और इसका जो ड्यूरेशन था वो ड्यूरेशन था 30 सेकंड टू 2 मिनट. ये तो हमने पढ़ा ही. बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान में भी इसके ट्रेमर्स महसूस किए गए. तो अभी इधर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो न्यूज़ से देखिए और वो क्वेश्चन का आंसर करने का कोशिश करिए. ठीक है, सो नाउ वी विल सी. ये जो भूकंप है और जैसे फ्लड्स है, स्टॉर्म्स है, स्नोफॉल है, एक्सट्रीम रेनफॉल है. फ्लड मतलब बाढ़ आना, स्टॉर्म मतलब जो अभी जो साइक्लोन आया था वो, फिर स्नोफॉल मतलब भारी बर्फवृष्टि होना, या फिर एक्सट्रीम रेनफॉल होला. ये जो 4 हमने देखे, ये जो है ये ज़मीन के ऊपर होते हैं. बट ठीक है, ये जो नेचुरल जो कैलामिटीज़ है ये ज़मीन के ऊपर होती है. दिस नेचुरल कैलामिटीज़ हैपन ऑन द अबोव द अर्थ, बट सम नेचुरल कैलामिटीज़ happen because of the movements of the below earth surface. Okay, like earthquakes and volcanic eruption. These are the natural movements which happen below earth, and we can feel its after effects on the earth. Okay, because of the earthquakes what happen? Our earth will shake, and because of that our buildings will collapse, our roads will collapse, everything will be devastated because of the earthquakes. And what happened because of the volcanic eruption? Some big lava is coming out of the ground, and this lava is coming above the ground, and because of that if people are living outside this volcanic region, they will get affected because of this volcano. Okay, so ये जो earthquake और volcanic eruption है ये इंसान को भारी मात्रा में
नुकसान पहुंचाते हैं। ये खूब बहुत ज़्यादा डिज़ास्ट्रस होते हैं। इससे क्या होता है, जीवन मान और जो प्रॉपर्टी रहती है हमारी उसकी बहुत ज़्यादा से हानि हो जाती है। ठीक है, तो अभी ये जो आपने भूकंप की न्यूज़ पढ़ी, ये आखिर हुआ क्यों, ये होता कैसे है? तो ये जो है पृथ्वी के अंतर्गत कुछ हलचल होती है, मूवमेंट्स होती है। ये मूवमेंट क्यों होती है ये अभी हम देखेंगे, बट उससे पहले हमको क्या है, इधर एक इन्होंने एग्जाम्पल दिया है वो भूकंप कैसे हुआ ये समझाने के लिए। तो इन्होंने क्या किया है कि टेबल में कुछ बुक्स रखे हैं और उसके ऊपर डस्टर, चॉक और पेन ऐसे कुछ कुछ चीज़ें रखी है। और उसके बाद वो हमको बोल रहे हैं कि एक बार जो डस्टर, पेन और इसके नीचे जो लग के जो किताब है, यू मूव इट वेरी फास्ट। ओके, सो व्हाट विल हैपन इफ़ यू मूव दिस बुक वेरी फास्ट। अगर हम ये किताब एकदम झटके से खींच लिया तो डस्टर और ये जो है उधर ही गिर जाएगा। एंड इन द सेकंड एग्जांपल व्हाट दे आर टेलिंग अस, मूव दिस बुक्स slowly slowly, okay, give him a shock, give this book a shock and see what happens. When we give a shock to these books, what will happen? Duster and pen will slightly oscillate and after that they will fall. Okay, so earthquake is making movements of the earth similarly like this. Okay, so earthquake and volcanoes occur because of the instability in the interior of earth. तो अर्थक्वेक और वोल्केनो क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ द इंस्टेबिलिटी। इंस्टेबिलिटी मतलब जो ज़मीन के अंदर, तो ये जो अर्थक्वेक है, ये जो ज़मीन के अंदर अस्थिरता जो है, इंस्टेबिलिटी जो है, उसके कारण ये अर्थक्वेक और वोल्केनोज होते हैं। ठीक है, बट ये अस्थिरता जो है क्यों आती है? बिकॉज ज़मीन के अंदर कुछ हलचल होती है, कुछ मूवमेंट्स होती है अर्थ के अंदर। अर्थ के अंदर क्या होते हैं, कुछ मूवमेंट्स होते हैं, उसकी वजह से ये अनस्टेबिलिटी होती है। इंस्टेबिलिटी या फिर अस्थिरता जो है उसकी वजह से होती है। बट ये अस्थिरता क्रिएट क्यों होती है? इससे पहले हमको क्या है, अर्थ कैसे क्रिएट हुआ, उसके अंदर क्या क्या है, और अर्थ का फॉर्मेशन शुरुआत से कैसे हुआ, हमारा सूर्यमाला कैसे क्रिएट हुआ, ये सब जानना हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि अर्थ का इंटीरियर जानना ये सब जानने के लिए हमें ज़रूरी है। क्योंकि अंदर क्या है अर्थ के, उसके बिना हम अर्थ का इंटीरियर का मूवमेंट कैसे हो रहा है वो नहीं पता कर सकते। इसके लिए मैं कुछ आपको स्लाइड्स दिखाता हूँ, हाउ अर्थ हैज़ फॉर्म। पहले क्या था, बहुत बड़ा, ऐसा माना जाता है कि बहुत बड़ा अवकाश में, ऐसा माना जाता है कि अवकाश में बहुत बड़ा नेबुला हुआ करता था। ये पृथ्वी और कुछ नहीं था तब, उससे पहले एक बहुत बड़ा नेबुला हुआ करता था जिनमें हेवियर एलिमेंट्स थे। ओके, तो उसमें उसके बाद क्या हुआ कि बिग बैंग थ्योरी हुई, बहुत सारा फ्यूजन रिएक्शंस हुआ और उस फ्यूजन रिएक्शन के कारण वो नेबुला जो था वो फट गया मतलब वो जो हेवियर एलिमेंट्स एक साथ जो थे वो एक दूसरे से अलग हो गए और बहुत सारा एनर्जी क्रिएट हुआ। उस एनर्जी के कारण क्या हुआ, ये जो नेबुला बिग बैंग होने के कारण अवकाश में ये जो सारे एलिमेंट्स थे, हेवियर एलिमेंट्स, लाइटर एलिमेंट्स, वो एक साथ ऐसे गोल गोल चक्कर काटने लगे, एक साथ घूमने लगे। ठीक है, तो उसकी वजह से बहुत सारी अवकाश में आकाशगंगाएं क्रिएट हुई। उनमें से हमारी मिल्की वे एक आकाशगंगा है। तो ये सारी आकाशगंगाएं जो है वो अवकाश में दे आर मूविंग इन अ सर्कुलर मूवमेंट्स। ओके, इफ यू सी एनी ऑफ द गैलेक्सीज इन द स्पेस, दे आर मूविंग इन अ सर्कुलर मैनर। ओके, सो हमारा जो गैलेक्सी है वो है हमारा मिल्की वे गैलेक्सी। और मिल्की वे गैलेक्सी में हमारा, उसमें क्या हुआ कि जो हमारा सेंटर में जो है सन फॉर्म हो गया और जो हेवियर एलिमेंट्स थे, सन का जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन था वो सबसे ज़्यादा था, सबसे ज़्यादा एनर्जी सन में था। तो सन के अराउंड क्या हुआ, जो अदर मैटर एलिमेंट्स थे, जो डस्टियर पार्टिकल थे, जो आइस पार्टिकल थे, वो सन के अराउंड घूमने लगे। तो कालांतर से क्या हुआ कि सूर्य जो सन है हमारा, सन के अराउंड क्या हुआ कि हेवियर एलिमेंट जो है वो सन के नज़दीक में रह गए और जो लाइटर एलिमेंट्स थे वो सन से दूर चले गए। लाइटर एलिमेंट्स लाइक डस्ट, लाइक आइस पार्टिकल्स, if any of the gases, they are the lighter elements, they have gone away from the sun. Okay, and if the heavy metals and the rocks, these the elements like this, they have, जो heavier elements थे, जो metal थे, वो sun के नज़दीक रह गए।
तो हम अगर देखेंगे हमारे जो प्लैनेट्स, ये जो अगर ये यहाँ पे देखेंगे, ये अगर सन है तो हेवियर एलिमेंट्स के जो हमारे प्लैनेट्स बने हैं, जैसे कि बुध, बुध सबसे नज़दीक है, वो मेटल का प्लैनेट है, मेटल या फिर रॉक्स का बना हुआ प्लैनेट है। फिर है शुक्र, और थर्ड नंबर पे हमारा अर्थ प्लैनेट है। वो अर्थ भी हमारा जो है, अर्थ जो प्लैनेट है हमारा, उसमें भी बहुत सारे हेवियर एलिमेंट्स है और डस्ट पार्टिकल भी है एंड बहुत सारे रॉक्स भी थे। ठीक है, तो अर्थ फॉर्म होने, तो ऐसे ऐसे ये सारे जो ग्रह है, जो प्लैनेट्स है, वो ऐसे फॉर्म होते गए। जो नज़दीक वाले प्लैनेट है उसमें सूर्य की ग्रेविटेशन की वजह से अर्थ और जो मार्स और बुध और शुक्र, जो वीनस और मर्क्यूरी जो प्लैनेट्स है, वो अर्थ के नज़दीक रह गए, क्योंकि उनके गुरुत्वाकर्षण सन में ज़्यादा था और वो मेटालिक जो पार्टिकल थे उससे वो प्लैनेट्स बने हैं। इसकी वजह से वो प्लैनेट जो है और सूर्य के नज़दीक हुए, और ग्रेविटेशन की वजह से उनमें मेटल एंड रॉक्स, they are present in these 4 planets. And the planets which are away from the sun, like Jupiter and Neptune, okay, and Saturn, these planets are made of gases. Okay, these planets are made of gases and dust particles and ice particles. Okay, because these are the lighter particles which got away from the sun. The gravitation pull of the sun was lesser at that place, so this particle goes away from the sun, and because of these particles these lighter planets have formed. Okay, these planets of the lighter particles have formed. अभी हम अर्थ में देखते हैं, अर्थ में क्या हुआ, जो बिग बैंग हुआ उसकी वजह से सारे पार्टिकल सन के अराउंड घूमने लगे। तो अर्थ जब घूम रहा था तो वो मेटालिक पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल, आइस पार्टिकल, ये सब भी उसमें थे, और ये सब सन के अराउंड चक्कर लगा रहा था। तो आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपन, ऑल दिस पार्टिकल्स कम टुगेदर एंड दे हैव फॉर्म्ड अ सर्कुलर ball shape like bigger particle. Okay, so they have formed a circular ball shape like a particle. So firstly it was not a circular shape, it was any irregular shape has formed, but after some time over the period of time it has become circular. But what happened after that, ये जो अर्थ की जो परत थी, ये जो बिग बैंग जो हुआ था, इसमें बहुत सारी एनर्जी क्रिएट हुई थी, बहुत सारा टेम्परेचर क्रिएट हुआ था। जब ये जो पार्टिकल्स अपने एक साथ आते गए, एक साथ जुड़ते गए, तो अर्थ का जो कोर था उसमें बहुत सारा एनर्जी जमा हो गया उसमें। क्योंकि एनर्जी क्यों जमा हुआ, क्योंकि उसमें बहुत सारा टेम्परेचर था। दिस पार्टिकल्स वेर हैविंग वेरी हाई टेम्परेचर्स। ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ का जो अंतरंग है उसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर क्रिएट हो गया। तो बट बाहर से ये प्लैनेट क्या हो गए, ठंडे ठंडे होते गए, बट अंदर से ये प्लैनेट गर्म ही रह गए हैं। तो अगर सारे पार्टिकल प्लैनेट्स अगर आप देखेंगे तो ये इसी स्ट्रक्चर से ऐसे ही है, अंदर से गर्म है और बाहर से ठंडे होते गए हैं। और अभी भी ऐसे ही हो रहा है, धीरे धीरे अंदर ठंडे होते जा रहे हैं, उनकी परतें धीरे धीरे ठंडी होती जा रही है। बट कुछ समय बाद क्या हुआ, अर्थ पे क्या होता था, ये जो पार्टिकल बिग बैंग हुआ था उसमें बहुत सारे मेटालिक पार्टिकल, जिसको हम उल्का कहते हैं, ये भी पार्टिकल स्पेस में घूम रहे थे। तो अर्थ में शुरुआत में क्या था, हमारा एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट नहीं करता था। तो एटमॉस्फेयर क्या काम करता है, बेसिकली एटमॉस्फेयर जो है, ये जो उल्का या फिर जो पत्थर जो अवकाश से जो आते हैं, उनको ये एटमॉस्फेयर रोकने का काम करता है। कैसे रोकता है, जब ये उल्का या फिर जो पत्थर है अवकाश से, जिस मेटल्स और रॉक्स व्हेन दे कम्स फ्रॉम द स्पेस, व्हाट हैपन्स, दे क्रिएटेड फ्रिक्शन विद द एटमॉस्फेयर। जो एयर, एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसके साथ क्या है, ये जो पत्थर नीचे आते हैं फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं। तो फ्रिक्शन से वो जो रॉक्स है वो जल जाते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में आने से पहले। बट इन द इनिशियल स्टेज व्हेन द अर्थ वाज फॉर्मिंग, एट दैट टाइम देयर वाज नो एटमॉस्फेयर। सो एटमॉस्फेयर नहीं था, तो क्या होता था, सारे जो रॉक्स आते थे या फिर पत्थर आते थे वो डायरेक्टली आके अर्थ से टकरा जाते थे। ठीक है, तो ऐसे ही एक बड़ा पत्थर आके अर्थ से टकरा गया, और उसकी वजह से क्या हुआ, अर्थ के अराउंड जो है, अर्थ का जो मटेरियल था वो बाहर निकल के अर्थ के अराउंड घूमने लगा।
ठीक है, अर्थ के अराउंड घूमने लगा और अर्थ के अराउंड घूमने के कारण उसने अर्थ के अराउंड एक रिंग तैयार कर लिया। और वो रिंग जो है बाद में वो सारे रिंग जो पार्टिकल थे वो एक साथ आ गए और वो सर्कुलर ऑब्जेक्ट बन गया। उसे ही आज हम मून कहते हैं। ये जो मून है, मून का फॉर्मेशन ऐसे हुआ है, वो अर्थ से ही निकल के एक मून बन गया अर्थ का। ठीक है, तो वो मून अर्थ के अराउंड क्यों घूमने लगा? क्योंकि अर्थ को जो है अपना एक ग्रेविटेशन है और मून को भी अपना ग्रेविटेशन है। जो अवकाश में कोई भी वस्तु अगर एग्जिस्ट कर रही है, these all part will have a gravitational force. Okay, सन को ग्रेविटेशनल है, सन इज हैविंग मैक्सिमम ग्रेविटेशन इन आवर सोलर सिस्टम। ओके, सन के ग्रेविटेशन की वजह से ही वो ये सब, सन के गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही ये सारे प्लैनेट सन के अराउंड घूम रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे अर्थ फॉर्म हो गए। तो अभी अर्थ जब फॉर्म हो रहा था तब क्या हो रहा था, मैंने जैसे बताया, ये सारे पत्थर, उल्का जो मेटल जो थे वो अर्थ पे आके डायरेक्टली टकराते थे, बिकॉज अर्थ डजंट हैव एनी एटमॉस्फेयर अराउंड इट। सो थोड़े टाइम पे क्या, अर्थ जो है, जैसे हम गैस पे हम दूध जब गर्म करते हैं तो क्या होता है, थोड़े टाइम बाद गर्म दूध के ऊपर एक लेयर जम जाता है जिसको हम मलाई कहते हैं। ठीक है, मलाई का एक लेयर जम जाता है। वैसे ही अर्थ के ऊपर भी जब अर्थ ठंडी हो रही थी तो अर्थ के ऊपर मलाई का एक लेयर बन गया, बट अंदर से क्या था, लिक्विड ही था, क्योंकि मेटालिक पार्टिकल जो थे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गए थे बिकॉज ऑफ द इंटेंस हीट। जब अर्थ एक साथ जुड़ गई तो ये मेटालिक पार्टिकल क्या थे या फिर रॉक्स थे, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गए थे। तो क्या हो रहा था, जब ये पत्थर आके ऊपर से लग रहे थे अर्थ की परत पर, तो क्या होता था, अर्थ की परत टूट जाती थी और अंदर से ये जो मेटालिक लावा था वो बाहर आता था। ओके, तो वो धीरे धीरे बाहर आके अर्थ की परत पे सेटल हो जाता था, कुछ टाइम ठंडा होके वो फिर से एक परत बना लेता। तो अर्थ की परत ऐसे बनी थी। तो जो अंदर वाला जो लावा था उसका, उस मटेरियल को कहते हैं ऑलिवाइन लावा। क्या, कौन सा लावा कहते हैं? ऑलिवाइन लावा। तो शुरुआत में, और जो ऑलिवाइन लावा जब ठंडा होता है तो वो बेसाल्टिक लावा में कन्वर्ट होता है। तो ये जो परतें जब टूटती थी तो ये ऑलिवाइन लावा बाहर आता था। ठीक है, और ये अर्थ की परत पे जो बनी हुई थी उसके ऊपर फैल जाता था। तो ऑलिवाइन लावा कन्वर्ट होता था बेसाल्टिक लावा। तो सबसे पहले जो अर्थ की परत बनी थी वो बनी थी बेसाल्टिक मटेरियल से। क्या मटेरियल है अर्थ की परत का? बेसाल्टिक मटेरियल। जो हम ओशन जिस क्रस्ट पर बैठे हैं आज, ओशन जिस क्रस्ट पर बहते हैं, वो जो परत है वो है बेसाल्टिक। ठीक है, तो धीरे धीरे ये ठंडे होती गई अर्थ, और अर्थ फाइनली हमारी अभी अर्थ फॉर्म हो गई। बट अभी हम देखेंगे अर्थ के इंटीरियर में क्या है, कि जिसके वजह से हमारी अर्थ की मूवमेंट होती है, अर्थ की जो परतें हैं उसकी मूवमेंट होती है और उसकी वजह से अर्थक्वेक होता है। अगर हम अर्थ का फॉर्मेशन देखेंगे तो हमको ये अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि अर्थ की मूवमेंट्स क्यों होती है। ठीक है, तो अभी हम अर्थ के अंदर क्या है ये देखेंगे। वी विल सी व्हाट इज इनसाइड द अर्थ। इफ यू टेक अ स्लाइस ऑफ दिस अर्थ, इफ यू टेक अ केक लाइक पीस स्लाइस फ्रॉम द अर्थ, then we can see what is inside the earth. On the above there is a continental crust. Okay, this is the continental crust, means all the continents are made of this crust. Okay, all the continents. Which are the continents? We know that North America, South America, then Africa, Europe, Asia, Australia, Antarctica, all these continents are made of this continental crust. Okay, so above जो सबसे ऊपर वाली परत है वो है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। उसके बाद ये उसी को पैरेलल हमारा ओशन है। ओशन के नीचे, अभी ओशन जो हमारा महासागर जिसे हम कहते हैं, जो समुंदर है, उसके नीचे जो परत है उसको हम बोलते हैं ओशनिक क्रस्ट। ठीक है, ओशन के नीचे जो परत है उसको हम बोलेंगे ओशनिक क्रस्ट। ये ओशनिक क्रस्ट है उसको। ठीक है, और उसके ओशनिक क्रस्ट के नीचे जो है वो है लिथोस्फीयर। ये जो रेडिश कलर है, ब्राउनिश जो कलर है, इसको हम बोलते हैं ये है लिथोस्फीयर। और ये जो तीनों परतों को हम एक साथ बोलेंगे लिथोस्फीयर। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट और लिथोस्फीयर, इन तीनों को एक साथ हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। ऑल थ्री टुगेदर वी कॉल देम एज अ lithosphere. Okay, continental crust, oceanic crust and lithosphere, these are the lithosphere, we call them as a lithosphere. और ये जो तीनों है ये सॉलिड में है, सॉलिड पार्ट है ये। ओके, these are घन, means they are in a solid condition. ओके, हमारे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हमको पता है पत्थर सॉलिड होते हैं।
फिर ओशनिक क्रस्ट भी सॉलिड है, बिकॉज ओशन उस पर अगर बह रहा है तो उसको कुछ सपोर्ट करने के लिए परत चाहिए, तो ओशनिक क्रस्ट इज ऑल्सो सॉलिड एंड दिस लिथोस्फीयर is also solid. Okay, so we all know that this is a solid. After this lithosphere there is a one more layer in the earth. What we called it as asthenosphere. What is it? Asthenosphere. This asthenosphere is not in solid condition or not in a liquid condition. It is in between solid and liquid condition. Means it is in a molten condition. Okay, so if we take any type of cream, so this asthenosphere it is in a molten condition, और क्रीम का जो कंडीशन रहता है ना, जो वो कंडीशन में है एस्थोनोस्फेयर. इट इज़ इन बिटवीन, ना वो सॉलिड है ना वो लिक्विड है. आफ्टर दैट देयर इज़ अ मैंटल. ओके, मैंटल जो है वो सॉलिड कंडीशन में है. आफ्टर दैट देयर इज़ अ आउटर कोर. आउटर कोर जो है वो लिक्विड कंडीशन में है. एंड दिस ग्रे पार्ट इज इनर कोर विच इज़ इन अ सॉलिड कंडीशन. ओके, सो नाउ वी ऑल नो दैट हाउ द अर्थ इज फॉर्म. अभी जो अर्थ की जो मूवमेंट होती है ना हमारी, वो मूवमेंट जो होती है एस्थोनोस्फीयर की वजह से होती है. किसकी वजह से होती है अर्थ की मूवमेंट? एस्थोनोस्फीयर. अभी एस्थोनोस्फीयर से आप बोलोगे एस्थोनोस्फीयर से क्यों होती है ये मूवमेंट? तो अभी हमारी जो अर्थ अगर हम देखेंगे, अभी हमारी जो पृथ्वी हम देखेंगे, तो उसमें क्या है, हमारे अर्थ में इंटेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में एनर्जी है. अगर हमारे अर्थ के अंदर का टेम्परेचर हम नापने जाएंगे तो इट विल कम अबव 6000 डिग्री सेल्सियस, जो है 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से भी ज़्यादा आएगा. हमारा पानी कितने को उबलता है? 100 डिग्री सेल्सियस को. तो कंपेयर कीजिए 6000 डिग्री सेल्सियस को, कितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा अर्थ के अंदर. और इतना सारा जो मटेरियल है, एस्थोनोस्फीयर, मैंटल, आउटर कोर, इनर कोर, दे आर हैविंग दिस टेम्परेचर अबव 6000 डिग्री सेल्सियस. जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर जाते हैं टेम्परेचर बढ़ता जाता है. ठीक है, क्योंकि अर्थ अभी तक पूरी तरह से ठंडा हुआ नहीं है. अर्थ के फॉर्मेशन में हमने देखा था बाहर वाली लेयर ठंडी होती गई, बट अंदर वाली लेयर अभी ठंडी नहीं हुई है. तो अर्थ जो है अंदर अभी तक बहुत ज़्यादा गर्म है. तो इसकी वजह से क्या है, अर्थ के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है. तो उसकी वजह से एस्थोनोस्फीयर जो ये जो है मोल्टन पार्ट जो है ना, तो उसको क्या होता है, उसको ये नीचे से एनर्जी मिलती है. और एस्थोनोस्फीयर में सेल्स बनते हैं, सेल्स. ओके, ये सेल मतलब क्या है, अगर हम बकेट में पानी लेते हैं और उसको हीटर से हीट करते हैं, देन व्हाट विल हैपन थ्रू दिस वाटर. इफ़ यू टेक अ हीटर एंड इफ़ यू टेक अ वाटर इन द बकेट एंड इफ़ यू प्लेस द हीटर इन द बकेट, व्हाट विल हैपन टू द वाटर. जो शुरुआत में जो ठंडा पानी था नीचे, वो गर्म हो जाएगा हीटर के हित से. नीचे वाला बकेट के जो नीचे वाला पोर्शन है ना, उसमें हीटर नीचे रखते हैं हम, तो हीटर के अराउंड जो गर्म ठंडा पानी था वो गर्म हो जाएगा. एंड आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, दिस हॉट वाटर विल गो अपवर्ड्स एंड द अपवर्ड वाटर इन द बकेट, इट विल, जो ठंडा है, अभी ऊपर वाला पानी क्या है, ठंडा रहता है, तो वो क्या होगा, नीचे आएगा गर्म होने के लिए. सो it will come downwards and after again this cold water will get heated because of this heater and it will come up. after that again the जो थोड़ा ठंडा पानी है वो फिर से नीचे आ जाएगा. तो ये अभी क्या होगा, जो ऊपर में जो थोड़ा ठंडा पानी था वो फिर से नीचे आ जाएगा. नीचे आने के बाद हीटर से एनर्जी लेगा, हीट हो जाएगा. फिर से वो ज़्यादा गर्म होने के बाद क्या होता है, उसकी घनता जो है कम होती है. ठंडा पानी, गर्म पानी जो है उसकी घनता कम होती है. घनता कम होती है मतलब वेट उसका कम हो जाता है और वो फिर से ऊपर चला जाता है. फिर जो ठंडा पानी होता है उसकी घनता क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो उसके कारण वो नीचे आता है. फिर हीटर से हीट लेता है, उसकी घनता कम होती है, फिर ऊपर चला जाता है. तो ये साइकिल जो है कंटिन्यूस रहता है. अभी आपको समझ आए, ये सर्कुलर सेल जो है, इसको हम सेल बोलेंगे, जो कन्वेक्शन सेल बोलते हैं इसको. वाटर में क्या होता है, हीटिंग के कारण कन्वेक्शन सेल क्रिएट होता है. हीटिंग, आफ्टर ऊपर जाके कूलिंग होता है थोड़ा, फिर कूल हुआ वाटर थोड़ा नीचे आता है, फिर गर्म होता है, फिर ऊपर जाता है. तो ये जब तक गर्म होना जाए पूरा, वो ऐसे साइकिल चलता रहता है. और ये कंटिन्यूसली बिल्डिंग साइकिल, जब तक आप यहाँ पे हीट सोर्स है नीचे, जब तक यहाँ पे नीचे हीट सोर्स है, गर्म करने वाली कुछ एनर्जी है, तब तक ये साइकिल चलता रहेगा. तो अर्थ में जो अंदर जो है ना, यहाँ पे अगर हम देखेंगे अर्थ के अंदर एक कंटिन्यूस, ये मैंटल, आउटर कोर और इनर कोर में क्या है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है. तो उसके कारण ये जो एस्थोनोस्फीयर है, इसको कंटिन्यूसली एनर्जी मिलती है.
और एस्थोनोस्फीयर के अंदर भी टेम्परेचर है, तो उसके अंदर भी खुद से एनर्जी एक है, उसके अंदर भी रेडियो एक्टिव मटेरियल है, उसके साथ मेटल्स है, रेडियो एक्टिव मेटल्स है, वो खुद भी अपना एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है, एनर्जी इसको कंटिन्यूसली मिलती रहती है। तो ये एस्थोनोस्फीयर में क्या होता है, यहाँ पे सेल तैयार होते हैं, कन्वेक्शन सेल, जैसे कि अभी हमने देखा था। यहाँ पे अगर हम देखेंगे इस तरह से ये सेल तैयार होते हैं, ठीक है। ये ऐसे घूमते रहते हैं, ये ऐसे गोल गोल घूमते रहते हैं, ठीक है। ये जो है ऐसे कन्वेक्शन सेल तैयार होते हैं, ये गोल गोल घूमते रहते हैं। यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं ठीक से बनाऊँ, ये इस तरह से तैयार होंगे और इसकी डायरेक्शन जो है ऐसे है, ओके। ये दूसरा सेल है इसके साइड में ही, और इसकी डायरेक्शन में अगर एरो से दिखाऊं तो ये ऐसे है, ठीक है। तो ये कन्वेक्शन सेल क्या है, घूमने लगे हैं। तो अभी इनको एनर्जी कहाँ आ रही है, ये जब नीचे इधर ये एस्थोनोस्फीयर में रहेंगे ना, ये नीचे वाले पोर्शन मैंटल से क्या लेंगे, एनर्जी लेंगे। यहाँ पे इधर मैंटल है, दिस पोर्शन इज मैंटल, ओके। ये क्या है, यहाँ पे मैंटल है। तो ये मैंटल क्या कर रहा है, इसको हीट दे रहा है। तो यहाँ पे आके नीचे ये यहाँ से घूम के, पहले यहाँ नीचे होते हैं तो नीचे हीट करता है मैंटल, तो ये ऊपर चले जाते हैं। ऊपर क्या होता है, ऊपर में यहाँ पे जो है हमारा ये लिथोस्फीयर है, ओके। व्हाट इज दिस, दिस इज लिथोस्फीयर, ओके। ये है हमारा लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर में क्या होता है, ये जो है एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है। रिलीज होती है मतलब ये लिथोस्फीयर जो है नॉर्मली ठंडा रहता है, तो ठंडा एनर्जी यहाँ पे जो गर्म लावा है इसको आके लिथोस्फीयर का एनर्जी देता है, तो वो उसका एनर्जी लूज करता है, और फिर ये लावा फिर से यहाँ पे नीचे के डायरेक्शन में आ जाता है। और फिर यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ से एनर्जी कलेक्ट करता है मैंटल से, फिर ऊपर जाता है। तो ये साइकिल ऐसे ही चलता जाएगा। वैसे ही इधर वाला सेल भी ये मैंटल से एनर्जी लेगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, फिर यहाँ पे एनर्जी ऊपर जाके लूज करेगा, फिर नीचे आएगा गर्म ठंडा होने के कारण, फिर मैंटल से एनर्जी कलेक्ट करेगा, फिर। और ये ऐसे 2 सेल यहाँ पे मैंने दिखा है, ऐसे लाखों करोड़ों सेल जो है, अनगिनत सेल अर्थ के नीचे जो है मूवमेंट हो रही है इन सेल्स की, ओके। बहुत सारे सेल्स है अर्थ के नीचे, ऐसे मैंटल के नीचे। तो यहाँ पे ये सेल्स है, ये जो सेल है यहाँ पे है, ओके। तो ये मैंटल के ऊपर जो सेल है, ये इसकी वजह से अर्थ की मूवमेंट हुई है। और अगर हम अर्थ देखा जाए, अर्थ का स्ट्रक्चर, अभी अर्थ का स्ट्रक्चर हमने देख लिया। और हमारा जो ये ऊपर वाला जो ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट, ये जो है ना लिथोस्फीयर, ये हमारे जो एस्थोनोस्फीयर जो है ना, ये मोल्टन वाला, इसके ऊपर तैर रहा है, ठीक है। हमारी बोट कैसे पानी में तैरती है, वैसे ही हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट एंड लिथोस्फीयर, ये जो टोटल हम इसको जो लिथोस्फीयर बोलते हैं, ये एस्थोनोस्फीयर पे क्या है, तैर रहा है, ओके। तो एस्थोनोस्फीयर पे ये तैर रहा है। तो अगर हम देखा जाए, फिर हम, ठीक है, अभी ये बात आपको समझ में आ गई कि अर्थ की जो, तो ये जो मूव होता है ना, ये जो कन्वेक्शन सेल है, इसकी वजह से क्या होती है, अर्थ की जो ऊपर वाली जो प्लेट्स है ना, ओशनिक क्रस्ट, इसकी मूवमेंट होती है। अभी ये मूवमेंट कैसे होते हैं हम देखते हैं। अभी अगर हम अर्थ देखा जाए ऊपर से, तो हमारी जो अर्थ है ये डिफरेंट प्लेट से बनी है। अगर हम कोई फुटबॉल देखते हैं, फुटबॉल में कैसे होता है, फुटबॉल में जो हेक्सागोन टाइप के शेप रहते हैं, ओके। तो ये डिफरेंट हेक्सागोन टाइप के शेप को क्या एक साथ जोड़ के पूरा फुटबॉल बनता है। तो ये डिफरेंट जो हेक्सागोन है उसको हम बोलेंगे प्लेट्स। तो हमारी अर्थ भी है ऐसे ही डिफरेंट प्लेट से बनी हुई है। पूरे अर्थ पे ऐसे बहुत सारे प्लेट्स है, ओके। तो हमारा जो फुटबॉल है हम उसको कैसे बनाते हैं, ये जो डिफरेंट प्लेट्स वी जो हेक्सागोन वाले शेप रहता है उसको हम स्टिच करते हैं टुगेदर, और उसका हम फुटबॉल बनाते हैं। वैसे ही अर्थ के जो प्लेट है एक साथ जुड़ के, ये प्लेट्स एक साथ जुड़ के क्या हुआ है, ये डिफरेंट अर्थ बनी है, ओके। सो अर्थ में जो है 7 मेजर प्लेट्स है। कौन कौन से 7 मेजर प्लेट्स है, तो सबसे बिग जो है ये पैसिफिक प्लेट है, ओके। ये यहाँ पे दिख रहे हैं समुंदर के ऊपर, ये पैसिफिक जो महासागर है, पैसिफिक सी जो है, इसके ऊपर ये पैसिफिक प्लेट है। उसके बाद है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, जो हमारा कनाडा और जो यूएसए है उस प्लेट को बोलते हैं नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। आफ्टर दैट दिस साउथ अमेरिकन प्लेट, दीज आर बिगर प्लेट्स आई एम टेलिंग यू।
आफ्टर दैट दिस अफ्रीकन प्लेट जो है कहाँ से कहाँ तक फैली है, ये उसमें अफ्रीका कॉन्टिनेंट भी आता है, एंड आफ्टर दैट दिस अटलांटिक ओशन एंड सम पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन आल्सो कम्स इन द अफ्रीकन प्लेट। और साउथ अमेरिकन प्लेट में भी अटलांटिक ओशन और अंटार्कटिक ओशन का सम पार्ट आता है। ओके, ये यहाँ पे अटलांटिक और यहाँ से नीचे अंटार्कटिक ओशन का भी पार्ट आता है। और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट में भी देखिए, ये यूएसए कनाडा के अलावा ये जो समुंदर है अटलांटिक ओशन और आर्टिक ओशन का ऊपर वाला जो पार्ट है ना, वो भी आता है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट में। अभी यूरेशियन प्लेट अगर हम देखेंगे तो यूरेशियन प्लेट में क्या है, ये यूरेशियन प्लेट में रशिया एंड यूरोप, एंड आफ्टर दैट दिस आर्टिक एंड अटलांटिक ओशन इज ऑल्सो कम अंडर दिस यूरेशियन प्लेट। आफ्टर दैट देर इज अ ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये यहाँ पे जो इंडियन ओशन, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया का जो पार्ट है ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में आता है। ठीक है, तो जो ये जो प्लेट्स है ये डिफरेंट प्लेट्स एक साथ जुड़ी हुई है। अभी ये जुड़ी हुई है नहीं है, जैसे फुटबॉल एक साथ सील देते हैं हम, फुटबॉल के जो हेक्सागन है हम उसको एक साथ सील देते हैं, बट ये जो पृथ्वी के जो अर्थ के जो प्लेट्स है ना, इसको सीला हुआ नहीं है, ये अलग अलग है। ये जो प्लेट जो है अलग अलग है, एक साथ सीली हुई नहीं है। ओके, दीज प्लेट्स मूव, इनका मूवमेंट होता है, इसकी वजह से ही अर्थक्वेक्स आते हैं। ठीक है, जो नेपाल में जो अर्थक्वेक हुआ था वो यहाँ पे हुआ था। ये हिमालय जो रीजन है ना, ये जो ऑरेंज लाइन यहाँ पे दिख रही है, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, ये दो प्लेट टकराने की वजह से यहाँ पे नेपाल में अर्थक्वेक हुआ था। ठीक है, तो ये जो जब ये प्लेट आगे मूव होती है तो यूरेशियन प्लेट भी इस साइड से मूव कर रही है, यूरेशियन प्लेट भी इस साइड से मूव कर रही है। ठीक है, तो उसकी वजह से उन दोनों के बीच में कोलिजन हुआ और वहाँ पे एनर्जी रिलीज हो गई और उसके वजह से अर्थक्वेक हुआ है। और ये अगर मैंने ये 7 बिगर प्लेट बताई, पैसिफिक, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, यूरेशियन, अफ्रीकन एंड ऑस्ट्रेलियन एंड दिस अंटार्कटिक प्लेट, जो साउथ में है हमारे पृथ्वी के वो है अंटार्कटिक प्लेट। ओके, तो ये 7 बिगर प्लेट है और ऐसे ही 20 से ज़्यादा छोटी प्लेट्स भी है अर्थ के ऊपर। फिलिपाइन प्लेट, ओके, फिर है नाज़का प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट और पैसिफिक प्लेट के बीच में कौन सी है, नाज़का प्लेट। फिलिपाइन प्लेट कहाँ पे है, यूरेशियन पैसिफिक प्लेट के बीच में फिलिपाइन प्लेट है। उसके बाद है यहाँ पे अरेबियन प्लेट, एनाटोलियन प्लेट, ओके, देन है कैरिबियन प्लेट, कोकोस प्लेट, गॉर्डा प्लेट, ऐसे बहुत सारी 20 के ऊपर ऐसे छोटी छोटी प्लेट है, स्कॉटिया प्लेट। ठीक है, तो इससे मिलके ये अर्थ बनी है। और ये जो प्लेट, हर एक प्लेट जो है अपना मूवमेंट करती रहती है, एक प्लेट इस साइड में जाएगी, एक प्लेट उस साइड में जाएगी। ये डायरेक्शन कैसे तय होगा अभी हम बताएंगे। वो जो कन्वेक्शन सेल बताए थे ना मैंने, एक कन्वेक्शन सेल जो है ये प्लेट का डायरेक्शन डिसाइड करते हैं कि प्लेट किस साइड में मूव होंगी। ओके, ये जो एरो जो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ये प्लेट्स का डायरेक्शन दिखा रहे हैं। ओके, ठीक है, अभी हम नेक्स्ट देखेंगे। अभी मैंने बताया था जैसे ये हमारा ओशनिक क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और ये नीचे वाला लिथोस्फीयर है। ठीक है, तो ये लिथोस्फीयर और ओशनिक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ये एक साथ मूव हो रहा है। कहाँ, किसकी वजह से मूव हो रहा है, एस्टोनोस्फीयर। एस्टोनोस्फीयर के जो कन्वेक्शन सेल है जब मूव करते हैं तो ऊपर वाली प्लेट्स भी मूव करती है, क्योंकि ये प्लेट्स फिक्स नहीं है तो ये मूवमेंट करेगी एस्टोनोस्फीयर के कन्वेक्शन सेल की वजह से। और इसमें ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी है, तो उसकी वजह से देखिए इतने बड़े बड़े भूखंड घुमा रही है ये एस्टोनोस्फीयर, तो इसमें कितना ज़्यादा एनर्जी होगा। हमारे जो खंड है हम उस पर रहते हैं, इतना सारा प्लेट्स एक साथ मूव हो रहा है तो उसमें कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा ये ध्यान में रखिए अभी। तो यहाँ पे देखिए ये लिथोस्फीयर है, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, नज़दीक आ रही है प्लेट, तो एस्टोनोस्फीयर ऐसे घूम रहा है, इसकी वजह से ये नज़दीक आ रही है। तो अभी हम देखते हैं कि एस्टोनोस्फीयर्स की मूवमेंट कैसे कैसे होती है, ये प्लेट्स कैसे मूव होती है। अगर एस्टोनोस्फीयर की सेल जो है, सपोज एस्टोनोस्फीयर की सेल है, डाइवर्जिंग सेल है उसमें, ओके, ये एस्टोनोस्फीयर का जो सेल है, एस्टोनोस्फीयर में जो घूमने वाला लावा है उसकी डायरेक्शन अगर ऐसे है, ऊपर में आ रहे हैं, जो कन्वेक्शन सेल की डायरेक्शन जो है, मोल्टन लावा जो है ऊपर आ रहा है, नीचे से ऊपर आ रहा है और दूसरी जगह पे नीचे जा रहा है, बट बीच में से क्या हो रहा है, ऊपर आ रहा है, तो इसके ऊपर के प्लेट जो होंगे उसका मूवमेंट कैसे होगा, साइडवर्ड्स। ओके, दे विल गो अवे फ्रॉम ईच अदर,
these limbs are going away from each other, so plates above these limbs also go away from each other. okay, ये लावा के ऊपर जो प्लेट रहेंगे वो भी एक दूसरे से दूर जाएंगे. ठीक है, तो ये जो डाइवर्जेंट यहाँ पे दिखाया मैंने, इसके नीचे ये दो सेल है, इस प्लेट के नीचे ये है और इस प्लेट के नीचे ए वाला सेल है. तो ये दोनों कैसे मूव कर रहे हैं, डाइवर्ज हो रहे हैं एक दूसरे से. ठीक है, तो ये प्लेट्स क्या है, एक दूसरे से अवे मूवमेंट कर रहे हैं. ठीक है, तो इस प्लेट को हम क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट प्लेट. ओके, नाउ वी विल सी कन्वर्जन प्लेट्स, हाउ दिस कन्वर्जन प्लेट्स आर मूविंग. तो कन्वर्जन प्लेट के नीचे कैसे सेल होगा, उसके अपोजिट. ओके, एग्जैक्टली अपोजिट होगा. अभी कन्वर्जन में कैसे होता है, तो ये सेल यहाँ पे जैसे ऊपर आ रहा था, ओके, तो वैसे ही ये सेल क्या है, नीचे जा रहा है. यहाँ पे अगर ये एरो का डायरेक्शन है ऐसे, अगर इसी सेल को यहाँ पे, अगर ये सेल यहाँ पे इस साइड में हम देखेंगे तो यहाँ पे ये नीचे जा रहा है. ओके, तो इस साइड में अगर दूसरा सेल होगा ऐसे, जो कि नीचे की साइड आ रहा होगा, तो वो नीचे आ रहा है. ये सेल क्या है, नीचे घूम रहा है. तो इसी सेल के दूसरे अपोजिट साइड में और एक सेल होगा, जिसकी वजह से क्या हो रही होगी, ये ऊपर वाला प्लेट इस साइड मूव कर रहा है और इसके साइड वाला प्लेट इस साइड मूव कर रहा है. ये दो कन्वे, तो यहाँ पे हो गए कन्वर्जिंग सेल और यहाँ पे हो गए डाइवर्जिंग सेल्स. ओके, तो यहाँ पे ही ये ऐसे कन्वर्जिंग सेल है. कन्वर्जिंग सेल में कैसे होता है, लावा ऊपर से नीचे आता है. ओके, अगर ये दूसरी डायरेक्शन हम देखेंगे ना, ये डाइवर्जिंग लिम्ब की, तो उसी डायरेक्शन में ये कन्वर्जिंग सेल भी रहते हैं. दूसरा लिम्ब उसके साथ में अगर होगा तो उस दोनों पे जो प्लेट्स होंगे वो एक दूसरे के नज़दीक आएंगे. ये प्लेट का ये जो बाजू है वो दूर जा रहा है, दिस साइड क्या हो रहा है, अवे जा रहा है. बट अगर हम इस साइड देखेंगे, ये प्लेट का ये जो बाजू है वो दूसरे वाली प्लेट के नज़दीक आ रहा है. अगर यहाँ पे हम कंसिडर करके ये बाजू ये वाला है, इधर हम इस प्लेट को अगर कंसिडर करेंगे तो ये एक दूसरे के नज़दीक आ रहा है. यहाँ पे दो प्लेट्स आर मर्जिंग टुगेदर. ओके, दे आर कमिंग टुगेदर. लावा जो है नीचे की तरफ मूव हो रहा है, तो उसके ऊपर के प्लेट कैसे मूव होंगे, वो भी ऐसे ही नज़दीक आएंगे और एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के साथ धक्का देंगे. तो उससे क्या होता है, एक दूसरे के साथ प्लेट्स की टक्कर हो जाती है और उसकी वजह से बहुत सारी एनर्जी क्रिएट होती है. और एक तीसरी डायरेक्शन है यहाँ पे, 1 सेकेंड, अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो ये यहाँ पे हम देखेंगे ये तीसरी डायरेक्शन है. बट इसमें मूवमेंट कैसी है, एक दूसरे को पैरेलल है. ये जो सेल्स यहाँ पे हम देख रहे हैं एक दूसरे को पैरेलल सेल्स है, एक दूसरे को पैरेलल है. इसके ऊपर जो प्लेट है ना, ये ऐसे घूमेंगे आगे पीछे, ऐसे एक दूसरे को घिस के जाएंगी. ये प्लेट एक दूसरे को घिस के ये प्लेट जाएंगी. दे विल मूव अवे बाय रबिंग ईच अदर. ओके, दे विल नॉट कोलाइड विद ईच अदर और विल गो अवे फ्रॉम ईच अदर. दे विल rub with each other and will pass away from each other by rubbing each other. Okay, so how they are going. यहाँ पे कन्वेक्शन सेल कैसे होंगे, अगर हम गाड़ी के टायर अगर देते हैं ना, गाड़ी के चक्के कैसे रहते हैं, ये इनके दोनों का सेंटर मैंने जोड़ दिया है ताकि आपको समझ में आए 3D में. ठीक है, तो ये एक की डायरेक्शन ऐसी है एक चक्के की, और ये वाले चक्के की डायरेक्शन ऐसी है. तो एक दूसरे पैरेलल है. ठीक है, ये वाला इस साइड में मूव हो रहा है और ये वाला इस साइड में, तो ये ऐसे कंटिन्यूसली मूव हो रहे हैं. तो उसकी वजह से उसके ऊपर वाली जो प्लेट्स है वो ऐसे मूव करके जा रहे हैं. ये यहाँ पे जो प्लेट की जो बाउंड्री है वो बस घिस के जा रही है, वो एक दूसरे को कोलाइड नहीं हो रही, बस घिस के ये बाउंड्री आगे बढ़ रही है. ठीक है, जो पैरेलल है उसकी वजह से वो मूवमेंट होती है. अभी हम यहाँ पे देखेंगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी क्या है, तब आपको समझ में आएगा कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हमने समझ ली. ठीक है, जो हमने यहाँ पे जो देखा अभी, प्लेट जो एक दूसरे के ऊपर मूव कर रही है, जो कन्वर्जिंग सेल है एस्ट्रोनोस्फीयर में, उसकी वजह से क्या हो रहा है, प्लेट जो एक दूसरे के नज़दीक आ रही है या फिर एक दूसरे के दूर जा रही है, तो उसी को हम बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी. ठीक है, यही है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, इससे कुछ अलग नहीं है, इसी को बोलते हैं हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी. ठीक है, तो हम अभी देखेंगे
सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। सी फ्लोर में क्या होता है, सी फ्लोर में क्या है, सी फ्लोर के नीचे भी अगर हमने एस्ट्रोनोस्फीयर कंसिडर किया ना, यहाँ पे अगर ये यहाँ पे सी फ्लोर है, सी फ्लोर में क्या है, कुछ कुछ जगह है सी फ्लोर में 1960 में जब वर्ल्ड वॉर 2 जब चल रहा था उसके पहले, तो जर्मनी ने क्या किया, रिसर्च चालू किया। तो जर्मनी की जो साइंटिस्ट थे उन्होंने वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या किया, अपने जो सबमरीन थे वो समुंदर के नीचे भेजे और समुंदर के नीचे क्या है उनको जानना था। तो हेनरी हेड्स और डायस दो साइंटिस्ट थे 1960 में, उन्होंने क्या किया, ये थ्योरी उन्होंने पब्लिश की कि उन्होंने क्या मेजर यहाँ पे पाया कि जब वो समुंदर के नीचे गए सबमरीन लेके, तो उनको ऐसा हर समुंदर के नीचे बीच में सेंटर में एक बहुत बड़ी खाई है, उसको हम बोलते हैं रिज। तो ऐसी बहुत बड़ी लंबी एकदम पूरे समुंदर के ऊपर फैली हुई है, पूरे समुंदर पूरा। अगर यहाँ पे अगर हम ये पैसिफिक ओशन देखते हैं तो ये पैसिफिक ओशन में ऐसे कम्प्लीटली ये बड़ी खाई है इसके अंदर बीच में, ओके। और वैसे ही अगर हम ये अटलांटिक ओशन देखते हैं तो इसके बीच में भी ये कंटिन्यूसली ऐसे खाई है। तो ये बहुत ही एक्सटेंसिव स्ट्रक्चर फैले हुए हैं सारे समुंदर में। तो उनको समझ में नहीं आया ये ऐसे क्यों हुआ है। पर जब उन्होंने ये जब ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी 1960 में डेवलप, तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जब 1960 में डेवलप हुई तो उनको समझ में आया कि ये स्ट्रक्चर्स ऐसे क्यों है। तो ये रिज बीच में क्यों आई थी, ताकि उस समुंदर के नीचे जो प्लेट्स है, ओशनिक जो क्रस्ट है ना, उसके नीचे कौन से सेल्स होंगे, डाइवर्जिंग सेल्स, ओके। यहाँ पे समुंदर के नीचे ये ऐसे डाइवर्जिंग सेल्स बने हुए हैं। ये कौन से सेल है, डाइवर्जिंग सेल। ये एक दूसरे के दूर जा रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं ये, ओके। ये लावा ऊपर आ रहा है यहाँ से और फिर नीचे जा रहा है, ऊपर आ रहा है फिर नीचे जा रहा है ये लावा। तो उसकी वजह से ये ओशन जो है एक दूसरे से दूर जा रहा है, फट रहा है वहाँ पे, ओशन एक दूसरे से दूर जा रहा है। फट रहा है मतलब लिटरली फट नहीं रहा है, एक दूसरे से इट इज़ गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर। बट व्हाट आफ्टर दैट व्हाट इज हैपनिंग, ये जो लावा है यहाँ पे ऊपर आके ये ओशन जो क्रस्ट है ना, वन सेकेंड, ये जो लावा यहाँ से निकल के ऊपर आके ये जो ओशनिक क्रस्ट है इसके ऊपर फैल रहा है, ठीक है। ये लावा ऐसे दोनों तरफ फैलता जा रहा है ओशनिक क्रस्ट के ऊपर। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, नया ओशनिक क्रस्ट क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो ये आगे आगे बढ़ते जाएगा, तो आगे बढ़ते जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो क्रस्ट क्रिएट होगा वो लेटेस्ट होगा, मतलब नया वाला क्रस्ट होगा यहाँ पे दोनों तरफ, ठीक है। तो ये जो रॉक्स होंगे वो लेटेस्ट वाले रॉक होंगे, और यहाँ के जो रॉक होंगे वो उससे थोड़े पुराने होंगे, ठीक है। और यहाँ के होंगे वो उससे थोड़े ज़्यादा पुराने होंगे, यहाँ के उससे थोड़े ज़्यादा पुराने होंगे, ठीक है। दोनों साइड में वैसे ही है। जैसे जैसे हम मिड ओशनिक रीज से दूर जाते हैं ये वो रॉक्स पुराने होते जाते हैं। तो ये ओशन में हो रहा है डाइवर्जिंग सेल्स के कारण, ठीक है। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग में समझ में आया। तो ये जो सी फ्लोर जो है आगे आगे बढ़ते जा रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो प्लेट से मूवमेंट कर रही है। अगर हम ये मैप में देखेंगे, ये जो प्लेट है ये रीज जो है ना, इसके नीचे क्या है, डाइवर्जिंग सेल है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये इस साइड मूव करेगा और ये प्लेट इस साइड मूव होगा, ओके। तो इसकी वजह से ये पैसिफिक प्लेट ऐसे मूव करेगी। सिमिलरली अटलांटिक ओशन में ये वाला प्लेट इस साइड चला जाएगा और ये वाला प्लेट इस साइड चला जाएगा, ओके। सो नाउ वी नो हाउ दीज प्लेट्स आर मूविंग, ठीक है। दे आर मूविंग, समुंदर के अंदर जो मिड ओशनिक रीज है वो एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं। बट अगर इसके अपोजिट हो जाए, समुंदर के अंदर ही इसके अगर अपोजिट होता है तो क्या होता है, तो ये हम यहाँ पे देखेंगे। अगर समुंदर के अंदर दो सेल नज़दीक आ रहे हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दो सेल नज़दीक आ रहे हैं, है ना। यहाँ पे ये दूसरा सेल है, इसके नीचे है ये नज़दीक आ रहे हैं। इसका डायरेक्शन एरो से दिखा है, देखिए येलो एरो। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, अगर दो समुंदर ओशनिक क्रस्ट अगर नज़दीक आ जाएंगे तो क्या होगा, ओशनिक क्रस्ट नज़दीक आएंगे तो एक ओशनिक क्रस्ट नीचे चला जाएगा और एक ऊपर चला जाएगा, ठीक है।
तो जो सबसे भारी ओशनिक क्रस्ट होगा वो दोनों एक ही मटेरियल के बने हैं। ऑलिवाइन रॉक जब ऊपर आता है तो वो बेसाल्टिक रॉक में कन्वर्ट होता है। ओशन जो है वो बेसाल्टिक रॉक से बने हुए, ठीक है। तो ये जो दो क्रस्ट एक दूसरे के ऊपर आएंगे तो जो ओशनिक जो प्लेट है जिसकी लेंथ ज़्यादा लंबी है, लेंथ में वो नीचे सबमर्ज हो जाएगी, और जिसकी लेंथ कम है उसका वेट कम होगा तो वो ऊपर चली जाएगी। तो ऊपर चली जाएगी तो क्या होगा, यहाँ पे ये दोनों प्लेट जो है यहाँ पे कोलाइड हुई है, ठीक है। तो कोलाइड हुई है तो ये कोलिजन के दौरान यहाँ का जो मैग्मा है वो ऊपर आके यहाँ पे समुंदर की परत पे जमा होना चालू होता है, ठीक है। तो ये ऐसे धीरे धीरे ये लावा यहाँ पे आके जमा होके ठंडा होता है और वहाँ पे ज़मीन या फिर क्रस्ट क्रिएट करने लगता है, ठीक है। ज़मीन क्रिएट होके धीरे धीरे वहाँ पे क्या होगा, ये जो मूवमेंट जो है प्लेट्स की वो तो कंटिन्यूस चलती ही रहेंगी, ठीक है। तो जब तक ये प्लेट्स की मूवमेंट चल रही है तब क्या होगा, यहाँ पे वोल्केनिक आइलैंड आर्क बनेंगे। ये कुछ दिन के बाद क्या होगा, कुछ दिन नहीं कुछ सालों, ये हज़ारों सालों के बाद ये मूवमेंट होता है। ये बहुत ही स्लो मूवमेंट होता है, ठीक है। हर जो प्लेट है, प्लेट का मूवमेंट जो है ना वो हर साल में 2 सेंटीमीटर या 2 से 6 सेंटीमीटर तक होता है। कितना, जो हमारी अटलांटिक ओशन, हमारा इंडियन ओशन है वो 1.5 से 2 सेंटीमीटर मूव कर रहा है, और पैसिफिक ओशन जो है 6 सेंटीमीटर मूव कर रहा है सबसे ज़्यादा। तो इतना सही मूवमेंट होता है प्लेट का हर साल में, ओके। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि ये आइलैंड जो है धीरे धीरे ये मैग्मा यहाँ पे जमा होके ऊपर आइलैंड के हमको आइलैंड दिखने लगेंगे समुंदर में, ठीक है। तो ऐसे आइलैंड बनते हैं। अभी कुछ दिनों के बाद क्या होगा, फिर ये ओशनिक क्रस्ट क्या है और आगे बढ़ती जाएगी, और यहाँ पे जो कॉन्टिनेंट होगा ना, ये दूसरे परत का अगर कॉन्टिनेंट, ये ओशनिक प्लेट क्या है कुछ दिन में कंज्यूम हो जाएगी, पूरी कंज्यूम हो जाएगी ना। जब जब नज़दीक आएंगे तो कुछ टाइम के बाद ये ओशनिक प्लेट ख़त्म हो जाएगी ये आइलैंड बनने में, ओके। तो क्या होगा, फिर यहाँ पे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट चालू होगा, वो यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पे दिखाया हुआ है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और अभी ओशनिक क्रस्ट की टक्कर चालू होगी कुछ दिन के बाद, कुछ सालों के बाद, ठीक है। ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट यहाँ पे चालू होगा टक्कर, और एक दूसरे के साथ टकराएंगे। फिर क्या होगा, यहाँ पे ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जब टकराते हैं तब ओशनिक क्रस्ट उससे हैवी रहती है। जो मैंने पहले बोला था, ओशनिक क्रस्ट का रॉक कौन सा रहता है, बेसाल्ट। ओशनिक क्रस्ट का जो रॉक है वो बेसाल्ट रहता है, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का रॉक कौन सा रहता है, एंडेसाइट। जो एंडेसाइट रॉक जो है ना वो बेसाल्ट से थोड़ा हल्का होता है, तो इसके लिए ओशनिक क्रस्ट ज़्यादा हैवी रहती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ओशनिक क्रस्ट नीचे चली जाती है और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ऊपर आने लगती है। और उस दौरान भी उस टकराव में यहाँ से मैग्मा बाहर पड़ता है, ओके। इस टकराव में क्या होता है, मैग्मा बाहर पड़ता है और ज़मीन से वोल्केनो आना बाहर चालू होता है। तो ये वोल्केनो क्या होता है, यहाँ पे फैलने लगता है। वोल्केनिक जो लावा है यहाँ पे वोल्केनो से बाहर आता है, और वो वहाँ पे वोल्केनिक आर्क क्रिएट होते हैं, जिसको हम वोल्केनिक माउंटेन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्लेट कंज्यूम करके ही ये वोल्केनिक आर्क भी बनते हैं, और वोल्केनिक माउंटेन जो है इसी तरह से बनते हैं। समझ में आया आप सबको? तो हमने अभी देख लिया हाउ दिस वोल्केनिक आर्क्स आर फाउंड एंड हाउ दिस आइलैंड्स आर फाउंड। अभी देखिए, अभी यहाँ पे 2 कॉन्टिनेंटल ख़त्म हो गई, फिर उसमें बाद में क्या होगा, ये ओशनिक क्रस्ट भी थोड़ी दिन के बाद ख़त्म होगी। फिर 2 कॉन्टिनेंट जो क्रस्ट है वो एक साथ टक्कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, 2 कॉन्टिनेंट जब एक साथ टक्कर लेने लगते हैं, अभी यहाँ पे देखिए 2 कॉन्टिनेंटल क्रस्ट अगर एक साथ टक्कर लेते हैं, या फिर 2 उसके नीचे क्या है, कॉन्वर्जिंग सेल है। कॉन्टिनेंट कैसे टक्कर लेंगे, अगर उसके नीचे कॉन्वर्जिंग स्केल रहेंगे तभी ही ये प्लेट्स आगे मूव करेंगी, ठीक है। तो इसके नीचे इस प्लेट का डायरेक्शन इस साइड, इस प्लेट का इस साइड, यहाँ पे डायरेक्शन दिया है प्लेट्स का, और नीचे है एस्टोनोस्फीयर का सेल, ओके। ये यहाँ पे इसके एस्टोनोस्फीयर का सेल है, ये दोनों आगे बढ़ रहे हैं, ये दोनों आगे बढ़ रहे हैं, ओके। तो आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, 2 कॉन्टिनेंट का टक्कर होगा, और इस प्लेट में जो भारी वाली प्लेट होगी वो नीचे चली जाएगी, और हल्की वाली प्लेट ऊपर चली जाएगी। बट इसमें ऐसा नहीं होता, नीचे जब जाती है ये प्लेट तो इजीली नीचे नहीं जाती। तो ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में क्या होता है, 2 प्लेट का टकराव चालू होता है। तो इस प्लेट के टकराव में क्या होता है, ये प्लेट मुड़ने लगना स्टार्ट होता है। ये प्लेट्स क्या होती है, मुड़ती है। इस प्लेट में क्या होता है,
जो प्लेट भारी है वो नीचे के साइड में दबती है और दूसरी जो हल्की प्लेट है वो ऊपर होती है, बट वो नीचे इजीली सबडग नहीं होते। इसमें क्या होता है, ये जो एंडेसाइड जो पत्थर रहता है ना, एंडेसाइड जो रॉक्स रहते हैं, उसमें क्या रहता है, उसका डेंसिटी जो है कम रहता है, उसकी वजह से ये जो रॉक्स है वो नीचे नहीं जा पाते ओशन एस्थेनोस्फीयर में। वो एस्थेनोस्फीयर में अगर नीचे जाते भी है तो फिर से ऊपर आ जाती है बिकॉज ऑफ द लो डेंसिटी। ओके, तो इसमें क्या होता है, दो जो क्रस्ट है एक साथ जब टकराव लेते हैं तो एक दूसरे पे प्रेशर बनाना चालू करते हैं। तो जिस प्लेट का ज़्यादा जो प्लेट है दोनों साइड से दबाव दे रहे, तो जो प्लेट ज़्यादा हैवी होगी वो दूसरे प्लेट को दबाते जाएगी अंदर की तरफ। ठीक है, ऐसे अंदर की परत, ये ऐसे परतें बनेंगी जो ऐसे लेयर क्रिएट होते जाएंगे, तो वो लेयर से लेयर क्रिएट होते हैं उससे क्या बनते हैं, माउंटेन्स बनते हैं। जो हमारा हिमालयन माउंटेन है इस प्रोसेस से बना है। जैसे अरवली माउंटेन है यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में जो रॉकीज माउंटेन है, साउथ अमेरिका में एंडीज माउंटेन है, तो वो जो है इस माउंटेन से बने हैं। जो हमारा अरवली है वो बहुत पुराना माउंटेन है, उसकी हाइट अभी बहुत कम हो गई है, तो वो हिमालय से भी पुराना माउंटेन है, बट अभी वो उसकी माउंटेन बनने की प्रोसेस जो है बंद हो चुकी है, क्योंकि वहाँ पे अभी प्लेट्स कोई एग्जिस्ट नहीं कर रही है, उसके नीचे जो कन्वेक्शन सेल है वो बंद हो गए, इसके लिए वो वहाँ पे मूवमेंट नहीं हो रही, तो वो माउंटेन बनने की प्रोसेस उसकी बंद हो गई। इसका फ्यूल क्या है चालू करने का, एस्थेनोस्फीयर के जो कन्वेक्शन सेल है उस फ्यूल के आधार पर ये आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, तभी ये माउंटेन बनेंगे। अगर ये यहाँ पे सेल एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो माउंटेन भी नहीं बनेंगे। तो हमने देख लिया कि माउंटेन्स कैसे बनते हैं। अभी सिमिलरली ये जो दो प्लेट्स एक साथ आ रहे हैं, ठीक है, अभी हम देखेंगे ब्लॉक माउंटेन कैसे बनते हैं। अगर जब दो प्लेट्स एक साथ आ रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, अगर पहले ही ज़्यादा लोड के कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, एक प्लेट में क्या होता है, कहीं पे फ्रैक्चर हो जाता है। ओके, किसी प्लेट में फ्रैक्चर हो जाता है और उस कारण ये स्लिपिंग प्लेन यहाँ पे क्रिएट होता है और उसके ऊपर दूसरी प्लेट स्लाइड हो जाती है ऊपर। ठीक है, दोनों प्रेशर दे रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, तो एक प्लेट नीचे घिसेगी और एक प्लेट ऊपर चली जाएगी। तो ये जो प्लेट है ऊपर चली जाती है और ऊपर आने की वजह से इसकी हाइट जो है बढ़ जाती है। अभी मैं यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ आपको। ओके, दिस इज़ वन प्लेट और ये दूसरी प्लेट है। ठीक है, ये प्लेट ऊपर चढ़ जा गई है, इसके ऊपर यहाँ पे दो प्लेट के बीच में क्या हुआ, फ्रैक्चर क्रिएट हो गया। ठीक है, और ये प्लेट नीचे चली गई, दोनों की मूवमेंट इस साइड ही हो रही है, बट क्या है, प्रेशर की वजह से यहाँ पे फ्रैक्चर क्रिएट हुआ, तो एक प्लेट दूसरे के ऊपर ऐसे चढ़ गई है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, ये जो पोर्शन है ना यहाँ पे, ये हमको ऊंचा लगने लगा और यहाँ पे ये जो पोर्शन है ये नीचा लगने लगा। तो इसमें क्या हो गया, ये एकदम स्टीप ऊंचा पोर्शन क्रिएट हो गया, तो वो हमको माउंटेन की तरह दिखने लगता है। ठीक है, तो वो माउंटेन की तरह, ये ऐसे ऊपर आ गया तो माउंटेन की तरह दिखने लगा, एकदम स्टीप पोर्शन। तो इस माउंटेन को हम क्या बोलेंगे, ब्लॉक माउंटेन। यहाँ पे दिखाया देखिए, ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे ये ब्लॉक माउंटेन, यहाँ पे ये ब्लॉक माउंटेन क्रिएट हो गया। ठीक है, और ये नीचे चला गया तो वो लेस हाइट पे चला गया, और यहाँ पे सिमिलरली ये यहाँ पे ब्लॉक माउंटेन क्रिएट हो गया। उसके बाद है ब्लॉक माउंटेन बाय डाइवर्जिंग लिम। अभी हमने देखे कन्वर्जिंग लिम वाले इफेक्ट देखे, अभी वैसे ही सेल के अगर हम डाइवर्जिंग, एक कन्वेक्शन सेल जो है एक दूसरे के दूर अगर जा रहे हैं, अगर वो ज़मीन के नीचे है, कॉन्टिनेंट के नीचे है और एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और कॉन्टिनेंटल के क्रस्ट के नीचे ये दो कन्वर्जिंग सेल है। ओके, इस साइड मूव हो रहा है, ये एस्थेनोस्फीयर में ये दूसरा कन्वर्जिंग सेल है। ओके, ये इस साइड मूव हो रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट मूव हो रहे, तो उसकी वजह से क्या होगा, ज़मीन वहाँ पे फटने लगेगी, ज़मीन एक दूसरे से दूर जाने लगेगी, ज़मीन एक दूसरे से डाइवर्ज होने लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये एरो से दिखाया है, ज़मीन यहाँ पे एक दूसरे से दूर जा रही है, यहाँ पे अनवॉर्पिंग हो रहा है, ज़मीन फट रही है। तो उसके बाद में थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, बहुत सालों के बाद ये ऐसे ज़मीन के ऊपर ये ऐसे ब्लॉक्स क्रिएट होंगे। ठीक है, ये जो ब्लॉक्स है ये ऐसे देखिए, यहाँ पे धीरे धीरे जब दूर जाएंगे तो ये ऐसे दीवारें क्रिएट होंगी, दीवारें, इसको हम बोलेंगे माउंटेन। तो ये जब दूर जाएंगे, देखिए ग्राफ बना के दिखाता हूँ, ड्राइंग,
ये जब दूर जाएंगे ना तो ये बीच वाला पोर्शन नीचे धंस जाएगा और ये साइड वाला पोर्शन ऊपर लगने लगेगा हमको। ये क्या, इस साइड मूवमेंट हो रही है, बस ये मूवमेंट इस साइड हो रही है, इसकी वजह से ये पोर्शन धीरे धीरे नीचे चला जाता है, तो हमको ये नीचे लगने लगता है। ठीक है, ये नीचे चला गया तो यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे रिफ्ट वैली क्रिएट होगी। क्या हो गई, इसको बोलते हैं रिफ्ट वैली। ये क्या है, रिफ्ट वैली। तो कुछ टाइम के बाद इसमें से नदी बहना स्टार्ट होगा, रिवर विल स्टार्टेड टू फ्लो बिटवीन दिस रिफ्ट वैली। और इसके जो कड़ा है ना, ये जो एजेस जो है इसके एकदम शार्प एजेस रहते हैं, ये माउंटेन के एकदम शार्प हाइट रहती है। ठीक है, इसमें ऐसा स्लोप नहीं मिलेगा आपको, ऐसे चढ़ के नहीं जा सकते, दिस विल बी वेरी शार्प हाइट। ठीक है, तो ये बीच में से जो रास्ता क्रिएट हुआ उसमें से रिवर फ्लो होगी। और अगर ये फिर भी ये मूवमेंट जो क्रस्ट है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, इसका मूवमेंट अगर फिर भी उसके बाद भी कंटिन्यू रहता है, ये डाइवर्जिंग लिम्स अगर एक्टिवेट रहती है, तो क्या होता है, कुछ सालों बाद यहाँ पे समुंदर का पानी अंदर घुसेगा, है ना। अगर ज़मीन दूर जा रही है तो समुंदर का पानी धीरे धीरे अंदर घुसना चालू होगा, तो वो लीनियर सी क्रिएट होगा। छोटा वाला समुंदर जो सी कहते हैं हम उसे, वहाँ पे सी क्रिएट होगा। और फिर अगर कुछ सालों बाद उसके बाद भी अगर ये मूवमेंट कंटिन्यू रहती है तो महासागर बनता है, इट विल बिकम अ ओशन। ठीक है, उसके बाद में ये ओशन बनेगी और यहाँ पे मिड ओशनिक रीच क्रिएट होगा। ठीक है, तो हमने ब्लॉक माउंटेन कैसे बनते हैं, रिफ्ट वैली कैसे बनती है देखा, और लीनियर सी कैसे बनता है देखा, मिड ओशनिक रीच कैसे बनती है ये देखा। और ये सी फ्लोर्स थ्रेडिंग इज द लास्ट पार्ट ऑफ दैट पार्ट, ओके, एज वी हैव सीन दैट। अभी हम देखेंगे आपका चैप्टर में क्या हो रहा है। तो अभी हमने पूरा थ्योरी और हम देखेंगे अभी आपके चैप्टर में क्या दिया है, तो आपको समझ में आएगा। अभी ये थ्योरी इसके लिए ज़रूरी था क्योंकि आपको ये चैप्टर समझना है। अभी क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, जनरली द मूवमेंट्स इन द अर्थ इंटीरियर ऑकर इन द अपर लेयर ऑफ द माउंटेन। ठीक है, हमने देखा था अपर लेयर ऑफ द मेंटल मतलब क्या है, एस्ट्रोनोस्फीयर। एस्ट्रोनोस्फीयर में ये सेल्स है, इसकी वजह से क्या है, अर्थ के जो प्लेट्स है वो मूवमेंट हो रही है। और यहाँ पे क्या है, ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी है, रेडियो एक्टिव मटेरियल भी है मेंटल में, तो इसकी वजह से ये जो एनर्जी है एस्ट्रोनोस्फीयर कहाँ से ले रहा है, अर्थ के कोर से, मेंटल से, आउटर कोर से ये एनर्जी ले रहा है। ठीक है, और ये एनर्जी वेव क्या करते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं या फिर एक दूसरे के नज़दीक आते हैं। सो इसकी वजह से क्या होती है, जब ये नज़दीक आती है तो प्लेट में अस्थिरता क्रिएट होती है। प्लेट क्या है, मूव कर रही है ना, प्लेट एक दूसरे से दूर जाएगी या एक दूसरे से नज़दीक आएगी तो इंस्टेबिलिटी क्रिएट होगी। तो ये जो मूवमेंट्स है इसको हमने तीन इसमें क्लासीफाई किया है। ये जो प्लेट का मूवमेंट है, वेलोसिटी, डायरेक्शन एंड लैंडफॉर्म दे प्रोड्यूस। तो वेलोसिटी में क्या है, स्लो मूवमेंट्स एंड सडन मूवमेंट। स्लो मूवमेंट में क्या होते हैं, ये कंटिन्यूसली ऑकर होते हैं, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन और कॉन्टिनेंट। हमने देखा था माउंटेन फॉर्मेशन में दो प्लेट्स धीरे 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 पहले समुंदर में क्या क्रिएट करते हैं, आइलैंड्स क्रिएट करते हैं, फिर समुंदर ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का टक्कर होता है तो वोल्केनिक आर्क्स क्रिएट होते हैं कॉन्टिनेंट के एज पे। फिर ये कॉन्टिनेंटल दो कॉन्टिनेंट, फिर ओशनिक क्रस्ट भी ख़त्म हो जाती है तो दो कॉन्टिनेंट एक दूसरे से टकराते हैं, तो उसके बाद में क्या बनते हैं, माउंटेन्स बनते हैं। तो ये बहुत ही स्लो मूवमेंट है। और कॉन्टिनेंट भी ऐसे ही बनेंगे, दो जब बड़े लैंडमास एक साथ आएंगे तो वो एक बड़ा कॉन्टिनेंट क्रिएट होगा। ठीक है, और उसके बाद है सडन मूवमेंट। सडन मूवमेंट में कैसे मूवमेंट होते हैं, अर्थक्वेक और वोल्केनो। अर्थक्वेक कैसे क्रिएट होता है, जब भी दो प्लेट एक साथ आएगी, टकराएगी, तो उसके कुछ बाद क्या होगा, दे विल अनेबल टू सस्टेन दैट लोड। तो उसके बाद में एनर्जी रिलीज होगी, मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है अर्थक्वेक में। सडन मूवमेंट होता है अर्थ का, तो उसके वजह से वहाँ पे अर्थक्वेक ऑकर होता है। तो उसके वजह से हमको जो हमने शुरुआत में देखा था नेपाल में, हिमालय जो माउंटेन है, दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एक साथ जुड़ने की वजह से हिमालय माउंटेन बने हैं। अगर हम यहाँ पे मैप में देखेंगे ना, यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे जो ये ऑरेंज लाइन है ना, यहाँ पे है हमारे हिमालयस। ओके, इस एरिया में ये जो दोनों प्लेट जहाँ पे मर्ज हो रही है ना, यहाँ पे हमारे हिमालयस लोकेटेड है। ठीक है, तो हिमालय में यूरेशियन प्लेट यहाँ से आ रही है और हमारी इंडियन प्लेट यहाँ से जा रही है, तो उसकी वजह से ये हिमालयस जो है, हिमालयस बनने का प्रोसेस अभी भी चल रहा है। तो कुछ सालों के बाद क्या होगा पता है, ये इंडियन प्लेट जो है पूरा कंज्यूम हो जाएगी यूरेशियन प्लेट के अंदर। ओके,
तो उसको बहुत साल लगेंगे, तो इंडियन प्लेट जो है वो कंज्यूम हो जाएगी कुछ सालों बाद, कुछ उसको बिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। सो कुछ सालों बाद ऐसे होगा। तो हिमालयाज माउंटेन ऐसे बने हैं। ओके, सो वी नो दैट बिकॉज ऑफ द स्लो मूवमेंट्स ऑफ द प्लेट्स these Himalaya mountains has created. Okay, the slow movement, because of the slow movements of the plates Himalaya mountains and continents are created. Okay, then sudden movement की वजह से earthquake या volcano होगा। sudden movement क्या होता है, जब दो प्लेट्स टकराती है तो सडनली मूवमेंट होती है तो अर्थक्वेक होता है, या फिर वोल्केनो कहीं से बाहर आ जाता है जब प्लेट के मूवमेंट होने की वजह से। और फिर डायरेक्शन की बेसिस के ऊपर भी इसके पार्ट्स किए गए हैं, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट। अभी हमने डायरेक्शन देखे ही है। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, जो सेल के हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी होते थे, ठीक है, एक दूसरे से अपोजिट जा रहे, घिस के जा रहे, और सेल के अपवर्ड मूवमेंट्स एंड सेल के डाउनवर्ड मूवमेंट, इसके बेसिस के ऊपर भी प्लेट्स के मूवमेंट होते हैं। ठीक है, जो सेल है कन्वेक्शन सेल, उसके ऊपर ही ये मूवमेंट डिसाइड किया। देन लैंडफॉर्म, लैंडफॉर्म में कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग, क्रिएटिंग कॉन्टिनेंट्स, प्लेटू एंड हाईलैंड्स। अब ये प्लेटू कैसे बनते हैं, प्लेटू मतलब पठार, पठार कैसे बनते हैं, जब भी दो कॉन्टिनेंट एक दूसरा से टकराएंगे वहां पे वो ट्रिमेंडस प्रेशर क्रिएट करेंगे। उस प्रेशर की वजह से क्या होगा, ये पीछे वाला जो फ्लैट लैंड है ना, यहाँ पे फ्लैट लैंड रहता है पहले, माउंटेन क्रिएट होने से पहले, तो ये जब एक दूसरे पे प्रेशर क्रिएट करते हैं और यहाँ पे माउंटेन बनने की प्रोसेस जब स्टार्ट होती है तो ये पीछे वाले लैंड पे भी बहुत ज़्यादा ट्रिमेंडस प्रेशर क्रिएट करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये लैंड ऊपर उठ जाता है, ये प्रेशर की वजह से, ये प्रेशर की वजह से यहाँ पे ये लैंड उठ जाता है ऐसे। ठीक है, ये दिखा, तो ये लैंड जो है पीछे का उठ जाता है और उसकी वजह से वो प्लेटूज बनते हैं एट हायर हाइट। आफ्टर दैट माउंटेन बिल्डिंग, फोल्डिंग और फॉल्टिंग माउंटेन वी हैव ऑलरेडी सीन। नाउ स्लो मूवमेंट जो है, द इफेक्ट ऑफ स्लो मूवमेंट कैन बी सीन इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन एंड कॉन्टिनेंट्स ऑन द अर्थ क्रस्ट। ये वी हैव ऑलरेडी सीन दिस। जब दो प्लेट्स एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो प्रेशर क्रिएट होता है, और दो प्लेट्स एक दूसरे के दूर जाते हैं तो टेंशन क्रिएट होता है। वी हैव ऑलरेडी सीन। इफेक्ट ऑन हार्ड रॉक में क्या होगा, हमने देखा था, जब दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं बहुत ज़्यादा प्रेशर से, वहाँ पे फॉल्ट क्रिएट होता है, या फिर वहाँ पे एक प्लेट में वहाँ पे फॉल्ट लाइन क्रिएट होती है, तो उसकी वजह से एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर घिस के ऊपर चढ़ जाती है, तो वहाँ पे ब्लॉक माउंटेन क्रिएट होते हैं। और टेंशन होने की वजह से एक दूसरे से दूर जाते हैं तो बीच वाला पोर्शन नीचे धंस जाता है, तो उधर भी उसके वजह से ब्लॉक माउंटेन क्रिएट होते हैं। और सॉफ्ट रॉक पे क्या होता है इफेक्ट, जब दो कॉन्टिनेंट एक दूसरे से जुड़ते हैं तो वहाँ पे फोल्डिंग होता है, फोल्डिंग की वजह से वहाँ पे माउंटेन्स क्रिएट होते हैं, फोल्डिंग माउंटेन बोलते हैं, जो हिमालय जो है फोल्डिंग माउंटेन्स है। ओके, और एक दूसरे से दूर जाएंगे कॉन्टिनेंट तो वहाँ पे फॉल्ट लाइन, फिर वहाँ पे रीज क्रिएट होगी, रीज के बाद वहाँ से रिवर बहेगी, रिवर के बाद अगर कंटिन्यू रहा तो सी बनेगा, और उसके बाद भी कंटिन्यू रहा तो ओशन बनेगा। ओके, सो वी हैव सीन ऑल दिस थिंग्स। उसके बाद हम देखेंगे फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन में अभी कैसे होता है, हमने देखा था, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द, बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी वेव्स प्रेशर वर्किंग टुवर्ड्स ईच अदर इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर वर्क होता है, एंड द लेयर्स ऑफ द सॉफ्ट रॉक्स फॉर्म फोल्ड्स, ये फोल्ड में कन्वर्ट होते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं ये फोल्ड ऐसे, तो उसकी वजह से फोल्ड होते हैं। वो प्रेशर क्या रहता है, वेरी हाई, एंड लार्ज स्केल फोल्ड्स आर फॉर्म्ड। और इसका कॉम्प्लेक्सिटी जो है, जब प्रेशर बढ़ेगा तो और इंक्रीज हो जाएगा, ये फोल्ड जो है बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एज अ रिजल्ट द सरफेस ऑफ द, अभी ये जब मैं प्रेशर क्रिएट करूँगा तो एक दूसरे के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा और उसकी वजह से वो अपलिफ्ट हो जाएगा, उधर का जो पार्ट है वो अपलिफ्ट होगा और उसकी वजह से फोल्ड माउंटेन्स क्रिएट होंगे। ये मैंने ऑलरेडी एग्जांपल बता दिया, हिमालयाज, अरावलीज, रॉकीज, एंडीज, आल्प्स, दीज आर द मेजर फोल्ड माउंटेन्स। ओके, वी हैव ऑलरेडी सीन दिस इज़ द सम पिक्चर। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये फोल्ड कैसे फॉर्म हुए माउंटेन के, जब एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं ये, तो ऐसे ये फोल्ड हुआ। इसको बहुत टाइम लगता है। ये हिमालय का टॉप व्यू लिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हिमालय फॉर्म हो गए। और हिमालय जब फॉर्म हो रहा था तो इधर वाला जो लैंड था ना, ये जिसको हम तिबेट कहते हैं, तिबेट वाला जो लैंड था वो टिबेटियन प्लेटू क्रिएट हुआ। दो लैंड जब एक दूसरे के साथ आके टकरा गए तो उसकी वजह से
ये पीछे वाले लैंड पे भी प्रेशर क्रिएट हुआ और वो लैंड अपलिफ्ट हो गया, तो वो उसको उसकी वजह से वो तिबेटन प्लेटू उधर क्रिएट हो गया। उसके बाद है ब्लॉक माउंटेन, हमने देखे थे। When movements occur in opposite direction to each other, tension is generated and faults are found in the earth's crust. तो ब्लॉक माउंटेन कैसे थे? दो तरीके से, टेंशन से भी क्रिएट हो रहा था और प्रेशर से या कंप्रेशन से भी क्रिएट हुआ था, ठीक है। तो ये ब्लॉक माउंटेन हमने ऑलरेडी देख लिए थे। जब प्रेशर जब एक दूसरे के ऊपर आता है, दो लैंड मास एक साथ आ जाते हैं, तो वहाँ पे फॉल्ट क्रिएट होने की वजह से एक लैंड मास दूसरे लैंड मास के ऊपर चला जाता है, तो ब्लॉक माउंटेन ये इसका एग्जांपल है, यहाँ पर क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो मेघालय प्लेटू जो है हमारा इंडिया का, वो इसी ब्लॉक माउंटेन का एग्जांपल है। वहाँ पे भी इस तरह से फॉल्ट लाइन क्रिएट हुई है और एक लैंड ऊपर चला गया है और वो क्रिएट हो गया, ठीक है। और ये रिफ्ट वैली हमने बताया था कि जब दो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एक दूसरे से दूर जाएंगे तो बीच वाला जो हिस्सा है वो नीचे टेंशन के कारण नीचे चला जाएगा और वहाँ पे ये रिफ्ट वैली क्रिएट होगी, ठीक है। तो रिफ्ट वैली में क्या रहता है? रिफ्ट वैली में साइड बाय साइड फीचर रहता है। ये दोनों साइड माउंटेन दिखने लगा और बीच में ये नीचे चला गया एरिया, और इसमें बीच वाले एरिया में क्या होता है? रिवर बहने लगती है। यहाँ पे जो नर्मदा रिवर है हमारे इधर, विंध्य प्लेटू जो है ना, विंध्य पर्वत के बीच में से ये नर्मदा रिवर बहती है, तो ये इसी का एग्जाम्पल है। और अगर हम मैंने एग्जाम्पल बताए थे सी के, तो यहाँ पे देखिए, ये जो अफ्रीकन प्लेटू है ना, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये जो एरिया है ना, ये अफ्रीका प्लेटू से जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, ये इससे दूर होता जा रहा है। तो यहाँ पे ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली क्रिएट हुई है। तो यहाँ पे जो है दो डाइवर्जिंग लिम्स है, ये वाला प्लेट भी इधर जा रहा है और ये वाला जो प्लेट है ये इधर जा रहा है। तो यहाँ पे एक छोटा प्लेट जो है वो इसका मूवमेंट इस साइड हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे एक रिफ्ट वैली क्रिएट हो गई है। तो अफ्रीका में यहाँ पे बहुत सारे लेक पाए जाते हैं इस एरिया में। तो लेक अभी तो फिलहाल लेक है, फिर वो रिवर बनेंगी और फिर कुछ साल बाद वहाँ पे सी बनेगा, और फिर ये साइकिल अगर ऐसे ही चलता रहा तो यहाँ पे ये आगे चला जाके यहाँ पे ओशन होगा। ओके, सो वी हैव सीन दिस एग्जांपल्स। तो अभी हमने ब्लॉक माउंटेन देख लिए, फोल्ड माउंटेन देख लिए। नेक्स्ट है एक ग्रेट रिफ्ट वैली, यहाँ पे एग्जांपल दिया है, देखिए, ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका और राइन रिवर रिफ्ट वैली ऑफ यूरोप। यहाँ पे भी सिमिलरली ब्लॉक माउंटेन की प्रोसीजर हुई है, जो एक दूसरे के दूर गए हैं और यहाँ पे नीचे ज़मीन धंस गई है और उसकी वजह से राइन रिवर क्रिएट हुई है यूरोप में। अभी कॉन्टिनेंट बिल्डिंग और इपेरोजेनिक मूवमेंट्स, ओके, कॉन्टिनेंट बिल्डिंग और इपेरोजेनिक मूवमेंट्स। तो हमने ये देखा था कॉन्टिनेंट कैसे बिल्ड होता है। पहले तो आइलैंड आर्क बनेंगे, धीरे धीरे समुंदर के अंदर जब ओशनिक क्रस्ट दो एक साथ आएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, लावा जमा होके दो जो कन्वर्जिंग सेल्स एक साथ अगर जुड़ जाएंगे तो क्या होता है, समुंदर में एक प्लेट सबसाइड होती है, एक प्लेट ऊपर चली जाती है और नीचे वाला लावा ऊपर आके वहाँ पे वो लावा जम के आइलैंड्स क्रिएट होते हैं। फिर आइलैंड क्रिएट होने के बाद क्या होता है, एक टाइम के बाद ये ओशनिक क्रस्ट ख़त्म हो जाती है एक साइड की, कॉन्टिनेंट की, और दूसरी ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एक साथ आते हैं और कॉन्टिनेंट के एंड में ये आइलैंड, जो दो आइलैंड है वो एक साथ टकराएंगे। यहाँ पे यहाँ का आइलैंड भी कंज्यूम होगा और फिर यहाँ पे जो कॉन्टिनेंट का जो एंड है वहाँ पे वोल्केनिक आर्क क्रिएट होंगे। फिर यहाँ का जो ओशनिक क्रस्ट है, यहाँ का ओशनिक क्रस्ट जो है वो भी ख़त्म हो जाता है और फिर दो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एक आ जाते हैं। जब ये कॉन्टिनेंट एक साथ आ जाते हैं तो वहाँ पे कॉन्टिनेंट बिल्ड हो जाते हैं। तो ये जो कॉन्टिनेंट बिल्डिंग और कॉन्टिनेंट जो कंज्यूम जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूसली चलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया है कि स्लो मूवमेंट्स ऑकर टुवर्ड्स द सेंटर और फ्रॉम द अर्थ सेंटर टुवर्ड्स, जो सेल जो है अर्थ के नज़दीक जा रहे हैं या फिर अर्थ से दूर जा रहे हैं, उसके ऊपर कॉन्टिनेंट बिल्डिंग का प्रोसेस रहता है।
इसकी वजह से क्या होता है, लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ इज अपलिफ्टेड और गेट सबसाइड। व्हेन द पार्ट ऑफ द अर्थ इज अपलिफ्टेड, continents are formed and therefore these movements are called continent building movements and extensive plateaus can also be formed because of such movements। ये हमने देखा है कैसे हिमालयस के पीछे तिबेटियन प्लेटू फॉर्म हुआ है। उसके बाद है सडन मूवमेंट। सडन मूवमेंट में देखिए, अभी हमने अर्थक्वेक कैसे हुआ था देखा था, प्लेट का मूवमेंट हमने देख लिया। प्लेट की मूवमेंट की वजह से क्या होता है, बहुत सारा प्लेट्स एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं और कुछ सालों के बाद क्या होता है, वो प्रेशर एकदम ज़्यादा बढ़ जाता है और प्रेशर बढ़ने की वजह से the plate cannot sustain that pressure and after that this pressure is gets released। so ये release जो pressure है वो this pressure releases in extensive amount of energy। so because of that sudden movement of the earth happens and this earth is nothing but the tremors, we called it as a quake, earthquake। okay, these tremors happens because of the sudden movement of the earth। so earthquake हमने देख लिए यहाँ पे कि कैसे एनर्जी रिलीज़ होती है, ट्रेमलिंग कैसे होता है, ठीक है। तब अभी कॉजेस क्या है अर्थक्वेक के, ये तो हमने ऑलरेडी देखे। मूविंग ऑफ द प्लेट, जो प्लेट मूव है, एक प्लेट अगर एक दूसरे के साथ दूर जाते हैं या एक दूसरे से नज़दीक आते हैं तो भी अर्थक्वेक होता है। कोलिजन ऑफ द प्लेट, देन प्लेट स्लाइडिंग वन बिलो द अदर, प्लेट एक दूसरे से ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं तो भी ये होगा। या फिर फॉल्ट क्रिएट हो रहा है, या फिर समुंदर में जो मिड ओशन रिग रीच हो रही है क्रिएट, उधर भी अर्थक्वेक होते हैं। उसकी वजह से क्या होती है, सुनामी जनरेट होती है। कभी कभी समुंदर का पानी का डिस्प्लेसमेंट होता है बहुत ज़्यादा, या फिर वोल्केनिक इरप्शन होते हैं समुंदर में, उसकी वजह से भी अर्थक्वेक आते हैं। हमने देखा था ऑलरेडी 7 बहुत बड़ी प्लेट्स है अर्थ में। उसके बाद फोकस एंड एपिसेंटर। ओके, हाई एनर्जी इज रिलीज। अभी अर्थक्वेक में क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे अर्थक्वेक की एनर्जी रिलीज होती है, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। अर्थक्वेक का फोकस जिसको बोलते हैं अर्थक्वेक का सेंटर, यहाँ से सारी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, यहाँ से सारी एनर्जी रिलीज होती है। तो ये जो वेव्स है इस पॉइंट से सारे वेव्स जाएंगे अर्थ के ऊपर, जो भी हमको धक्के महसूस होते हैं तो ये इस पॉइंट से जनरेट होते हैं। यहाँ पे जब प्लेट्स की मूवमेंट होती है और सडन मूवमेंट होती है जब प्लेट्स की यहाँ पे, तो ये यहाँ पे बहुत सारे एनर्जी वेव्स क्रिएट होते हैं और वो पृथ्वी के ऊपर आते हैं, अर्थ के ऊपर आते हैं और बहुत सारा विनाश उससे पैदा होता है, ठीक है। तो ये जो सेंटर पॉइंट है अर्थ के नीचे जहाँ पे ये प्लेट्स एक दूसरे से टकराए थे, इसको बोलेंगे आप फोकस, या फिर एनर्जी जहाँ से रिलीज़ हुआ था उसको बोलते हैं फेकस। और अर्थ पे, ज़मीन पे, जब जिस जगह पे ये जो वेव्स है जिस जगह पे सबसे पहले हमको महसूस हुए, उस पॉइंट को हम बोलते हैं ईपी सेंटर। क्या बोलते हैं, ईपी सेंटर। और ये ईपी सेंटर और जो फोकस जो है ना, वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहते हैं। दीज आर द परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ईपी सेंटर और फोकस। ओके, सो यहाँ पे अगर हम लाइन बनाएंगे तो ये यहाँ से ईपी सेंटर परपेंडिकुलर है, इसको 90 डिग्री एंगल बनाते हैं वो। तो सबसे कम डिस्टेंस रहता है जहाँ पे अर्थवेव्स, ये जो अर्थक्वेक वेव्स जो है वो ट्रैवल होते हैं, उसको बोलते हैं ईपी सेंटर। सबसे पहले ये ईपी सेंटर में अर्थक्वेक वेव्स महसूस होते हैं। तो उसके बाद है ये जो अर्थ वेव्स हमने देखे थे, जो यहाँ पे वेव्स यहाँ से निकलते हैं ना जब ट्रेमर अर्थक्वेक होता है, तो वो 3 टाइप के वेव्स निकलते हैं। तो कौन से वेव्स है, प्राइमरी और पी वेव्स। प्राइमरी वेव जो है वो अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ना, तो उसके पार्टिकल भी ऐसे ही मूव करेंगे। ओके, आगे पीछे मूव करेंगे, दे विल मूव लाइक दिस। अर्थ, इफ प्राइमरी वेव इज मूविंग लाइक दिस, इफ इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट लाइक दिस, सो इट्स पार्टिकल विल मूव लाइक अहेड एंड बैक। ओके, सो ये जो वेव्स है ये अर्थ पर आते हैं और इससे जो हमारी बिल्डिंग की मूवमेंट, जो इस तरह से जो मूवमेंट होती है ना, आगे पीछे वाली जो मूवमेंट होती है बिल्डिंग की, अर्थक्वेक जब आता है तो ये जो है प्राइमरी वेव की वजह से होती है और इसका स्पीड सबसे फास्ट रहता है। और ये जो अर्थक्वेक वेव जो है वो लिक्विड, सॉलिड और गैसेस तीनों मीडियम से जाते हैं, बट जब ये लिक्विड से पास होता है तो वो अपने डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, प्राइमरी वेव्स, ठीक है। उसके बाद है सेकेंडरी वेव। सेकेंडरी वेव में कैसे होता है, अगर इफ सेकेंडरी वेव यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल कर रही है ना, अगर ये इसकी डायरेक्शन है ना मूवमेंट की, तो उसके जो पार्टिकल है ना वेव्स के, तो वो ऐसे ऊपर नीचे मूव करेंगे। वेव इस डायरेक्शन में जा रही है बट उसके पार्टिकल ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जब ये अर्थ पे आते हैं तो हमारी बिल्डिंग जो है ऊपर नीचे मूव करती है,
तो दीज वेव्स आर वेरी डेंजरस वेव्स, ओके। सो उसकी वजह से हमारे अर्थ या फिर जो पेड़ है डायरेक्टली उखड़ जाते हैं, ज़मीन से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये वेव जो है वेरी डेंजरस रहते हैं और इसकी स्पीड जो है प्राइमरी वेव से थोड़ी कम रहती है और वो लिक्विड में ये वेव्स एब्जॉर्ब होते हैं, ये लिक्विड में ये वेव्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं, सेकेंडरी वेव। उसके बाद ये सरफेस वेव, जब ये दोनों वेव्स जो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी जब सरफेस पे आते हैं तो वो एल वेव्स जो सरफेस में जो अर्थ के परीख से, अर्थ के पेरीमीटर से ये वेव्स भागते हैं, ठीक है। तो ये वेव्स अर्थ के पेरीमीटर से भागते हैं, इसके लिए ये डेंजरस है। जो नुकसान होता है इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि ये पेरीमीटर से जा रहे हैं तो हमारे घर वगैरह जो है अर्थ के पेरीमीटर में ही बने हुए हैं, तो उसकी वजह से ये वेव्स भी बहुत ज़्यादा नुकसान क्रिएट। फिर सिस्मोग्राफ है, सिस्मोग्राम हम किसको बोलते हैं, जो अर्थ क्वेक का जो मेजरिंग यूनिट है उसको हम जो अर्थक्वेक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है ना उसको हम सिस्मोग्राम बोलते हैं। और अर्थक्वेक जो है स्मॉलेस्ट जो है वेव्स हम स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट वेव हम मेजर करते हैं इस इंस्ट्रूमेंट से। यहाँ पे ये एक एग्जांपल दिया है सिस्मोग्राम का, ठीक है। और अर्थक्वेक मेजरिंग का यूनिट क्या है, यूनिट जो है रिश्टर स्केल अर्थक्वेक मेजरमेंट का, ओके। उसके बाद हमने देखा था इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक क्या होंगे, क्रैक और फ्रैक्चर होता है, कॉजेज लैंडस्लाइड, ओके। लैंडस्लाइड भी होता है अर्थक्वेक मूवमेंट जो होगा सडनली, तो उसकी वजह से लैंडस्लाइड भी होगा, रॉक नीचे आएंगे, किसी ऊपर गिरेंगे वो, तो उसकी वजह से ग्राउंड वाटर जो है अपना चेंज भी कोर्स कर देता है। अगर प्लेट की मूवमेंट हो रही है, अगर ग्राउंड वाटर में वाटर अगर किसी इस डायरेक्शन से मूव हो रहा है और वो प्लेट की मूवमेंट ऐसे होगी तो वो ग्राउंड वाटर जो है डायरेक्शन चेंज कर देगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारी वेल्स को पानी भी आ जाता है कभी कभी, और कभी कभी बहुत सारी वेल्स सूख भी जाती है, ड्राई हो जाती है, पानी चला जाता है उन वेल्स का। अभी सब एरिया क्या होते हैं, ऊपर चले जाते हैं, कुछ नीचे दब जाते हैं। सुनामी भी जनरेट होती है अर्थक्वेक की वजह से। अभी ये सुनामी जो है बहुत ज़्यादा डेंजर है। सुनामी कैसे जनरेट होता है, ओशन में जब अर्थक्वेक होता है ना, तो ओशन में सडन मूवमेंट की वजह से प्लेट की एक प्लेट ऊपर चली जाती है और एक प्लेट नीचे चली जाती है ओशन के अंदर, ओशनिक क्रस्ट की इधर। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये जब प्लेट का मूवमेंट ऐसे हो जाता है ना तो बहुत ज़्यादा वाटर का डिस्प्लेसमेंट होता है। जब ये प्लेट ऐसे मूव हो जाता है तो इस किनारे का पानी यहाँ पे आ जाता है, समुंदर के अंदर चला जाता है, दोनों साइड का पानी समुंदर के अंदर चला जाता है। और उसके बाद जब ये सेटल हो जाता है तो पानी जो है बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से किनारे पे फेंक दिया जाता है। तो वो बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से वो सुनामी का पानी आ जाता है, तो उससे वजह से कोस्टल एरिया जो रहते हैं उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। स्नो कवर्ड एरिया में एवलांचेस भी आ सकते हैं। एवलांचेस मतलब बहुत ज़्यादा बर्फ गिरना एक ही टाइम पे, बिल्डिंग कोलैप्स होता है, लॉस ऑफ लाइफ प्रॉपर्टी हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन रूट डैमेज हो जाते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम, फ़ोन लाइन, इंटरनेट लाइन सब बंद हो जाता है। फिर उसके बाद है ओल्केनोज। ओल्केनो कैसे आते हैं, ओल्केनो क्या है, ज़मीन के अंदर हमने देखा था कि जो एस्ट्रोनोस्फीयर में जो लावा है वो अगर ज़मीन के बाहर आ जाता है तो उसको हम ओल्केनो बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ओल्केनो बोलेंगे। तो ओल्केनो कैसे क्रिएट होता है, जब अर्थ के सडन मूवमेंट होते हैं और ये वोल्केनो को किसी पाइप के थ्रू अगर पाइप मतलब अर्थ के ऐसे पाइप जैसे स्ट्रक्चर होता है अर्थ में क्रिएट, और उसकी वजह से अगर वोल्केनो बाहर आ जाता है तो कोनिकल टाइप का, यहाँ पे देखिए सेंट्रल टाइप और कोनिकल वोल्केनो क्रिएट होता है। अर्थ में क्या होता है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर तैयार होता है, पाइप लाइक वेंट क्रिएट होता है यहाँ पे, और उसकी वजह से ये यहाँ पे मैं दिखा के बताता हूँ आपको, ठीक है। ये ऐसे जो है यहाँ पे कोनिकल स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, और ये अगर एस्थोनोस्फीयर है ना इधर नीचे, तो उसके बीच में से ये ऐसे पाइप लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। तो ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर से ये नीचे का वोल्केनो बाहर आता है और ये ऐसे ज़मीन पे जमा होना स्टार्ट होता है। तो ये कुछ टाइम के बाद ऐसे कोनिकल शेप ले लेता है, ओके। तो ये ऐसे माउंटेन के जैसा दिखने लगता है हमको कुछ टाइम बाद। तो ये ऐसे वोल्केनिक माउंटेन्स क्रिएट होते हैं, जो जापान में फुजियाना माउंटेन, माउंट किलिमांजारो जो टांजानिया में है, ये इसी तरह के एग्जाम्पल है। और दूसरा जो है फिशर टाइप वोल्केनो। फिशर टाइप वोल्केनो क्या है, ऐसे फ्लैट लैंड रहता है इधर और ये नीचे एस्थोनोस्फीयर है, ओके। तो यहाँ पे क्या है, ऐसे क्रैक आ जाते हैं, ये ऐसे बहुत सारे क्रैक आते हैं, और ये क्रैक से क्या है, ये ज़मीन का लावा ऐसे बाहर आके फैलने लगता है, क्रैक का लावा।
ज़मीन से ऐसे लावा आता है और बाहर फैलने लगता है। तो ये बहुत सारा लावा ऐसे फैलने लगता है, तो इससे प्लेटूज क्रिएट होते हैं। फिशर टाइप वोल्केनो से क्या होता है, प्लेटूज क्रिएट होते हैं। जो हमारा डेक्कन प्लेटू है इसी तरह से बना हुआ है, वो लावा से बना हुआ प्लेटू है। ठीक है, अभी वोल्केनो 3 टाइप के वोल्केनो की इरप्शन है। एक तो डॉर्मेंट वोल्केनो, एक तो है लाइव वोल्केनो। अगर किसी वोल्केनो में कंटिन्यूसली यहाँ पे वोल्केनो इरप्शन हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे लाइव वोल्केनो, एक्टिव वोल्केनो। जो जापान में माउंट फुजियामा जो है लाइव वोल्केनो है, या फिर माउंट स्ट्रॉम्बेली इन मेडिटेरियन सी जो कि इटली में है, यहाँ पे कंटिन्यूसली इरप्शन होते रहते हैं, तो इसके लिए हम बोलेंगे लाइव वोल्केनोज, एक्टिव वोल्केनोज। और फिर उसके बाद है डॉर्मेंट वोल्केनो। डॉर्मेंट वोल्केनो में क्या रहता है, ये ऐसे वोल्केनिक माउंटेन पहले बहुत क्रिएट हुआ रहता है, बट कुछ सालों से वहाँ पे इरप्शन आया नहीं है, बट वहाँ पे क्या है, इरप्शन आने के चांसेस है। ओके, यहाँ पे इरप्शन आने के चांसेस है, तो उसको बोलेंगे हम, मतलब वो सो गया है थोड़ी टाइम के लिए, तो उसको हम बोलेंगे डॉर्मेंट वोल्केनो। जो माउंट वेसुवियस है इटली में, वो उसका एग्जाम्पल है। माउंट कटमाई अलास्का में, और बैरन आइलैंड जो इंडिया में है, इसी का एग्जाम्पल है। डॉर्मेंट है वो 2017 में अभी एक्टिव हुआ था। फिर उसके बाद है डेड वोल्केनो, या फिर एक्सटिंक्ट वोल्केनो। क्या है, एक्सटिंक्ट वोल्केनो। इसमें अभी फिलहाल के टाइम में इरप्शन होने के कौन चांसेस नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे एक्सटिंक्ट वोल्केनो या डेड वोल्केनो। तो उसका एग्जांपल है माउंट किलिमांजारो इन टांजानिया। ओके, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे इफेक्ट ऑफ वोल्केनो। वोल्केनो से क्या होता है कि लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी होती है। जब वोल्केनो बाहर आता है किसी भी जगह पे, अगर यहाँ पे हम वोल्केनो का पिक्चर देखें, यहाँ पे देखिए, जब ये वोल्केनो ऐसे इरप्ट होता है ना, तो इसके नीचे जो गांव है, घर है, तो उसके वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट क्रिएट होता है, और वो डेंजरस होता है रहने के लिए, क्योंकि कितना वोल्केनो अंदर से बाहर आ रहा है वी डोंट नो। और यहाँ पे जब बाहर आता है तो ये बहुत सारे गैसेस, डस्ट, ऐसे मटेरियल बाहर लाता है। और यहाँ पे जो गैसेस जो रहते हैं, विषारी गैसेस भी रहते हैं, जो कि डेंजरस टू ह्यूमन लाइफ रहता है। ठीक है, सो दिस गैसेस कैन बी पॉइजनस, सो इट विल लीड टू लॉस ऑफ लाइफ। सो ये जो वोल्केनो रहते हैं, बट वोल्केनो के अंदर से जो राख वगैरह जो बाहर आता है, उसकी वजह से जो हमारी ज़मीन जो है ना, वो उपजाऊ भी बन जाती है। बट ऐसा उपजाऊ ज़मीन क्या फ़ायदा कि जहाँ पे हम खेती ही ना कर सके। ठीक है, तो इस ज़मीन में हम खेती कैसे कर पाएंगे कि यहाँ पे अगर वोल्केनो है, यहाँ पे पीछे साइड में आग जल रही है और वहाँ पे खेती करने जाओ, तो उसका कोई मतलब नहीं होता उस ज़मीन का। अगर वो वोल्केनो डॉर्मेंट बन जाता है तो उस ज़मीन का मतलब है, बट अगर एक्टिव वोल्केनो है देन इट इज़ नॉट ऑफ एनी यूज़। ठीक है, तो कुछ कुछ टाइम पे ऐसे भी होता है। और क्या है उसके, वेपर, स्मोक, ऐश। और वोल्केनिक की वजह से क्या होता है कि मैनी मिनरल जो है वोल्केनो को नज़दीक आ जाता है, मोल्टन मेटल बाहर आ जाता है, तो उसके साथ मिनरल्स भी पाते हैं। तो वोल्केनो की वजह से ये मिनरल जो है हमको ज़मीन के बहुत ज़्यादा नज़दीक में मिल जाते हैं। ठीक है, और कुछ टाइम में नई ज़मीन भी तैयार होती है वोल्केनिक इरप्शन से, जैसे हमने डेक्कन प्लेटू देखा था। और कुछ टाइम पे कुछ आइलैंड जो है डिसअपियर भी हो सकते हैं। ठीक है, और वोल्केनिक के जो माउथ रहते हैं उसमें ये जो क्रैटर इसका क्रिएट होता है ना, यहाँ पे कभी कभी ये जब डॉर्मेंट बन जाता है और वोल्केनिक सडन इरप्शन होता है तो टूट जाता है ये ऊपर वाला एरिया, तो वहाँ पे क्रैटर बनता है, तो वहाँ पे लेक भी डेवलप होते हैं। ठीक है, तो ये हमने वोल्केनोस का देखा। अभी क्या है नेक्स्ट, ठीक है दोस्तों, तो आज के लेक्चर में इतना ही। हम मिलेंगे अभी नेक्स्ट लेक्चर में। माय चैनल नेम इज़ मेक डिफरेंस विद नीलेश। प्लीज़ लाइक माय चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट यू विल गेट टू नो व्हाट आई एम अपलोडिंग ऑन द यूट्यूब। ठीक है, थैंक यू।